नाम तो चल रही है आपसे and request everybody out and second is on advanced section which will be delivered by Deepak sir and he will come and the topic of ChatGPT and AI. This topic was selected just because we are facing a lot of issues in our practice that we need to cooperate with advanced technologies which are coming in the way. उन सब के लिए इस नेशनल लाइफ पे टॉपिक्स पे भी एक सेमिनार करवाया जाए और हमने सर से बात करी थे वाज रेडी एंड I'm here to welcome all of you. Sir is coming just after 1 minute. Some of the highest chairman sir and I would request if Sushil Reddy please go to the stage and he will now काफी लंबे समय के बाद रोहतक में सेशन हम दोबारा करते हैं क्योंकि टैक्स कोऑर्डिनेट सेशन में बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया और लास्ट वीक हमने हमारा में करना किया हुआ था तो welcome to the topic seminar of the topic ChatGPT and AI. Harish Nagpal our technical with us and I welcome you sir to the Rohtak branch and for the session and I welcome every member present in the house from Mohanas, Karamir sir, Naveen sir, Sushil sir, Sijal Master sir, Rakesh sir and every member present in here and I welcome everyone present here. Now I since 2005 with a BCom degree from Delhi University in 2002 and MBA he holds the ISA and IFRS qualification as well. Over the past 2 decades, Navish has amassed a wealth of experience in various organizations managing finance and accounting functions in large corporations and MNCs. His expertise is not confined to traditional accounting but extends to both direct and indirect taxation. In 2017, Navish embarked on a new journey. His firm offers a range of services including direct, indirect tax, consulting, accounting and outsourcing services. Navish is not just a finance professional, he is a technological enthusiast with a passion for learning about artificial intelligence. He is on a mission to revolutionize the lives of finance professionals by encouraging the early adoption of new technologies. And many more about the Harish Nagpal ji. He is working on AI and artificial intelligence and even session in various branches like Gurgaon and many branches. Welcome you sir and I invite you to start the session and over to you sir. And thank you for such a nice introduction, Gaurav ji. I would like to first thank Rohtak branch member, Rohtak branch committee को मुझे ये मौका दिया कि आज मैं AI के ऊपर आप लोगों को कुछ बता पाऊँ, कुछ उसके अंदर और आप लोगों का ज्ञान बढ़ा पाऊँ. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. And especially thanks to Sushil ji, हमारे senior मेरे करीब जिन्होंने यहाँ थोड़ा टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए. And believe me, आज का सेशन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो it will be a very useful session for all of you. It's my guarantee to you. सभी ने सुना होगा तो इतना बस वाकई में क्यों है AI का.
क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं एआई की, जो भी बहुत कुछ एआई के अंदर चल रहा है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। एंड आई थिंक सबने चैटजीपीटी का नाम जरूर सुना होगा। चैटजीपीटी क्या है, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है हमारी पर्टिकुलर लाइफ में। एंड स्पेशली मैंने जो अभी पीपीटी डिजाइन करी है, आई हैव ट्राइड कि इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं पर्टिकुलरली हमारे फाइनेंस की या जो हमारे ई प्रोफेशनल रिलेटेड है उससे निकल कर रहे हैं। बेनिफिट एंड चैलेंजेस क्या है हमारे एआई के। अब एआई कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके ऑब्वियसली उसमें बेनिफिट उसमें चैलेंजेस भी होते हैं अडॉप्ट करने के लिए। हाउ टू यूज एआई फॉर द बेस्ट प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। एआई के ऊपर फाइनेंस में प्रैक्टिस के अंदर जॉब के अंदर क्या क्या उसकी इंप्लीकेशंस हैं। स्पेशली जैसे मैं आपको बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या वे फॉरवर्ड है। एंड आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन आंसर उसके सेशन के बारे में। इन द मीन टाइम अगर आपको लगे बीच में भी तो भी वी कैन स्टार्ट। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने सेमिनार गुड़गांव में, द्वारका में, अनिल में खड़ा था मेरा नाम इन रोहतक एंड रोहतक से बड़े हम तो अब रोहतक में आके एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है। एक अपना महसूस होता है जब यहाँ से आओ तो काफी अच्छा लगा जब आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आया। मुझे लगा कि हाँ चलो एटलीस्ट अगर दो लोगों की लाइफ की थोड़ी नई से कनेक्टिंग होती है आई विल फील वेरी मच ग्रेटिट्यूड से आई सी कि हाँ। तो सर कुछ नवीन सारी फोटो लग रही है फिर बोला जाएगा क्या दिख रहा है आगे दिन का चिराग। तो मेरा अपना ये मानना है कि सर एआई लाइफ राजू का चिराग है और वो चिराग हमारे उससे निकल चुका है। अब हमें है कि हमें उससे होने साल के लिए देखनी होगी। इट इज काइंड ऑफ सिमिलर थिंग कि हम आज के टाइम पे जो चीज सोच नहीं सकते हैं वो हमारे लिए एआई करना ने स्टार्ट कर दिया है। सर कंटेंट एक्टिविटी रखेंगे मैंने फंक्शनैलिटीज हैं उसके लिए डिटेल लेना है। तो जो सर्च किया था प्रॉपर्ली मिला नहीं। जो प्लगइन पेड प्लगइन है ARIN PM है वो और एक्सप्लोर करने के लिए है। अगर हम चैटजीपीटी का पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं तो अभी जैसे कि हम आगे चलेंगे आप लोगों को लगेगा कि हम क्या मिस कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए। कहते हैं लिमिटेड स्कोप रहेगा ना। इन लिमिटेड स्कोप नहीं होगा। इसमें क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर में जैसे पहले सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपका एक पीडी मैनेजर आपने कर दिया क्या ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जैसे ह्यूमन माइंड है हमारा तो ह्यूमन माइंड अपने आप अपनी न्यूरॉन से अपनी चीजों से खुद निकाल सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे निकालना हो और जो पहले कभी प्री डिफाइंड भी नहीं है आज तक किसी ने कुछ पूछा नहीं है उसके ऐसा लेकिन उसको ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि जैसे हमने सीए का कोर्स पढ़ा दिया तो हम सीए का कोई भी क्वेश्चन अगर आए जो पहले कभी नहीं हमने अटेम्प्ट किया तो हम उसका अपने न्यूरॉन को जो जाके सेट कर रखते हैं कि उसका क्या आंसर निकलना चाहिए। तो एआई जो पर्टिकुलर चीज है वो इस एवोल्यूशन पे पहुंच गई है कि अगर पर्टिकुलर किसी चीज का आंसर नहीं है सिस्टम में या उसके दिमाग में तो वो खुद अपना दिमाग लगा सकती है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बिल्कुल सर मैं गूगल पे भी अगर कोई चीज़ सर्च करता हूँ वो आंसर वो भी वही मेरे को देता है। एआई या चैट जीपीटी पे भी कुछ सर्च करता हूँ वो भी वही सेम लगभग आंसर देता है। सर ये जो गूगल में फर्क ये है गूगल आपको स्पेशलाइज्ड आंसर नहीं देता है आपको 5 या 6 10 ऑप्शन दे देता है और अगर आप उससे ये पूछना चाहो कि एग्जांपल मेरे को अपने सी बनाना है तो सी बना के नहीं देगा आपको वो मेरे को 6-7 ऑप्शन दे देगा। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि इट इज लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट। ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है आपके साथ चल रहा है आप उसको बोल दो मेरी सी बना दो आपकी सी बना देगा तो आपको उसके लिए बोलो कि मुझे ये एनालाइज करके दे देगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस है। वहां पे आप गूगल पे जाके खुद कर रहे हो आपको एक सिस्टम बता रहा है कि आप सर्च कर सकते हो वहां पे आपको पर्सनली आंसर दे रहा है उस चीज का। चैट जीपीटी के अंदर मैं क्या उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ और वही मेरे को वो आंसर देता है। मैं गूगल पे भी अगर कोई चीज़ लिखूंगा तो मुझे वो पहले नंबर पे वही आंसर वो दे रहा होता है। नहीं थोड़ा सा फर्क है। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पर्सनली आंसर दे रहा है चैट जीपीटी। गूगल आपको क्या बोल रहा है कि उससे मैच करते हुए जो भी उसको सजेस्टेड आंसर लगते हैं वो आपको वो देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16
वहाँ पे वो भी मेरे को वही आंसर देगा वहाँ पे, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर आपका एक वो हो गया। लेकिन हाँ, मैंने कहीं कोई डेटा एनालिसिस के लिए उसको कहा है कि अगर मेरी सेल इतनी इंक्रीज हो रही है तो मेरा क्या उसके ऊपर वो इम्पैक्ट रहेगा। सर वो भी आएगा, बट ऐसे करो, अगर ChatGPT में जैसे आप आगे जाएंगे, आपने गूगल में मारा कि मुझे कॉन्फिडेंस 16 चाहिए, तो आपको 6 या 7 ऑप्शन दे देगा कि ये क्लिक कर लो, ये क्लिक कर लो, ये क्लिक कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बताएगा कॉन्फिडेंस 16 में क्या है। अगर आप उससे ये पूछोगे कि कॉन्फिडेंस 16 में मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछना है, तो आपको वो भी आंसर आपको पर्टिकुलर बता देगा, जो हम गूगल पे नहीं कर पाते। तो जैसे ह्यूमन माइंड देख सकता है, सोच सकता है, सुन सकता है, वैसे ही एआई की टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे सुन भी सकती है, देख सकती है और चीजों को एनालाइज कर सकती है अपने आप उठा। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया कि इंटेलिजेंस तो है बट वो आर्टिफिशियल है। कुछ क्वेश्चन अभी हम एआई के आई थिंक इतने पास जा चुके हैं, तो ChatGPT के बारे में 1 साल हो गया। नवंबर 2022 में आया था ChatGPT का फर्स्ट वर्जन। क्या एआई हम लोगों के लिए कोई नई चीज है? क्या हमने पहले कभी एआई नहीं देखी थी? एआई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एआई एकदम से ऐसा कुछ मार्केट में आ गया कि पहले एआई नहीं। एआई के ही अपने अलग-अलग वर्जन्स हैं जो अपने वर्जन आके इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करें, जैसे आपने बोला, गूगल हमारी पर्सनलाइज सर्च को चेक कर लेता है कि ये जो पर्सनलाइज हमारी जो इंटेंशन है सर्च करने की, वो ऑटोमेटिकली आपको आके बता देता है। अगर आप YouTube देखना चाहें तो YouTube में क्या है कि YouTube में आपको पर्टिकुलरली जाके वो बता देगा कि ये कंटेंट ये पर्सन देख रहा है, तो आप इतने पीछे एल्गोरिथम में सब कुछ बना हुआ है कि वही कंटेंट आपको दिखाएगा जो आप देखना चाह रहे हो। बार-बार घूम करके आपको भी कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि एआई पहले नहीं था, बट इशू क्या हो रहा है कि एआई को नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या हो गया है कि पहले तो आप कंटेंट डालते थे YouTube पे फॉर एग्जांपल, अभी क्या हो गया कंटेंट आप बता भी सकते हो, ChatGPT से बोल सकते हो या मुझे कंटेंट ही बना दे, अपलोड ही कर दे। इस तरह की इवोल्यूशन सब मार्केट में आती जा रही है कि एआई के भी आगे इवोल्यूशन और इंक्रीज होते जा रहे हैं। So drone is an example of AI. Sorry? Drone. रोबोटिक्स is also a part of it. AI के भी अपने अलग-अलग वो हैं, डोमेन्स हैं, जैसे सीए का के अपने डोमेन्स रहते हैं, आगे डोमेन्स हैं। तो रोबोटिक्स में आता है, मशीन लर्निंग उसके अंदर आता है, ये सब आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे मैंने बोला सीरी, एलेक्सा, नेटफ्लिक्स, कोई फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, सेल्फ ड्रिवन कार बना रहे हैं, वो भी क्या है? दैट इज आल्सो एआई, वो भी एआई। आपको पता जाएगा बगैर ड्राइवर का हो जाएगी, वो उसके सेंसर ले लेगा, इतना देख लेगा, अपने आप डिसीजन ले लेगा वहां पे, अपने आप डिसीजन ले लेगा कि यार यहाँ पे लगने वाली है कोई चीज, तो मैं इसको यहीं की गाड़ी को रोक दूँ। तो एआई है, बट एआई इतना धीरे इतना मतलब इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है, अपनी चीजें को इतनी इवॉल्व कर रहा है कि अब इसके बारे में जानना और सीखना करने के लिए हम फाइनेंस लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया। जैसे आपको बता था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एआई है कैसे, जैसे हमने बात की कि रूल बेस्ड एआई हो गया कि ये रूल है, इस रूल के पर्टिकुलर ऐसा होगा तो ऐसा ऑटोमेटिकली वो आपको उठा के उसका आउटपुट आके दे देगा। सेकेंडली जैसे कंटेक्स्ट अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेनिंग कंटेक्स्ट, जैसे मैं बता रहा हूं आपको ChatGPT, गूगल असिस्टेंट उस तरीके से हो गए जो उस चीज को याद भी रख लेंगे, आपने क्या पहले पूछा है उसका कॉन्टेक्स्ट भी देख लेंगे कि पहले कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको पर्सनलाइज करके उसका आंसर लिखा के दे देंगे। एंड थर्डली जैसे मैं ChatGPT के बारे में बता रहा हूँ कि ChatGPT इज ए सिस्टम जहाँ पे प्री डिफाइंड डाटा पूरे यूनिवर्स का उन्होंने उठा के उसके अंदर ढाके डाल दिया, ठीक है। और उसके अंदर पहले उन्होंने ढाके उसके अंदर डाटा डाल दिया, डाटा ढाके डालने के बाद उन्होंने ये सिस्टम बना दिया कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, आप करते हैं ट्रेनिंग की उसके अंदर। अब धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड वो सूनर और लेटर स्पेसिफिक ChatGPTs फोटो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ChatGPT या किसी नए नाम से फॉर सीएस, फॉर लॉयर्स, फॉर एनी अदर पर्सन, जहाँ पे स्पेसिफिक केस लॉ, स्पेसिफिक जिस चीजों पे डील करना है वहाँ के स्पेसिफिक आने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज आल्सो द नेक्स्ट स्टेज
जहाँ पे पर्टिकुलरली ओवरऑल सिनेरियो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर डोमेन वाइज भी आपके पास असिस्टेंट आपके पास रेडी होगा। तो लोगों ने ऐसा भी टर्म स्टार्ट कर दिया उसके अंदर। तो जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि व्हाई दिस मोमेंट ऑफ एआई, बस क्यों है इतना? थिंग इज कि एआई जो है आज के डेट में हम जितने अपने आप को मर्जी ये बोल लें कि चलो ठीक है मैं कल सीख लूंगा, परसों सीख लूंगा, 10 दिन बाद सीख लूंगा, महीने बाद सीख लूंगा, बट अल्टीमेटली बात नहीं है कि महीने बाद मतलब कोई धक्के से सिखा रहा होगा, अगर अभी सीख लेंगे इतनी जल्दी तो हमारी इतना है। इट इज ग्रोइंग इन अ वेरी एक्सपोनेंशियल स्टेज। इतनी एक्सपोनेंशियल स्टेज है कि फ्रेंकली के मतलब इतना डेवलपमेंट इसके ऊपर हो रहा है। एंड टॉपिक के बीच में कि अब पहले तो एआई चैटजीपीटी नहीं आया था मार्केट में, तो जैसे ही चैटजीपीटी आया आई थिंक आपको पता होगा गूगल की शेयर की वैल्यू इतनी बिलियन डॉलर पे डाउन हो गई। तो अब एक रेस और चल पड़ी है, पहले वो रेस नहीं थी कि अगर मैंने चैटजीपीटी का प्रोग्राम चैटजीपीटी अगर इतनी मार्केट शेयर दे गया तो अब उस रेस में गूगल, उस रेस में मेटा, उस रेस में बाकी सभी लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जो पहले थी थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही थी, थोड़ी सी कम स्पीड पे इंक्रीज हो रही थी, अब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि सभी मार्केट में आ गए हैं। जैसे एग्जांपल देके पहले अगर कोई चीज नहीं जाती है तो बहुत कम लोग उसको वो करते हैं, पर कंपटीशन के हिसाब से लोगों ने अब उसके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए कि आप इसको हमें अपने हिसाब से कैसे अपनी टेक्नोलॉजी में इसको घुसाना है, कैसे हमें अपनी लिए बेस्ट बनाना है। गूगल इज वर्किंग डे एंड डे नाइट आउट कि मुझे कैसे गूगल का किसी ने पूरा बाहर है उसका। हां, तो गूगल इज आल्सो वर्किंग कि मैं कैसे बाहर को और बेटर बनाऊं चैटजीपीटी से। ऐसे ही क्लाउडे करके एक आया है, क्लाउडे भी एक नया सा लाइक चैटजीपीटी प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को और इंप्रूव कर रहा है उन चीजों में। तो नाउ इज अ रेस, अब वो रेस स्टार्ट हो गई है। अगर इस रेस में हमें तक ये नहीं पता है कि चैटजीपीटी क्या कर सकता है तो हम बहुत अभी हम उन चीजें पीछे हैं। जैसे आपको कहा था कि सोशल मीडिया पे तो कंटेंट जो है हम डालते हैं, आप क्या है कंटेंट आप बना भी सकते हो, तो किस तरह से आगे जाने वाली लाइफ में आगे इसमें हमारे किस तरह से हमारी प्रैक्टिस, किस तरह से हमारी जॉब और किस तरह से पूरी इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा सर्विस इंडस्ट्री, हर तरह की सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ही तूफान आने वाला है। और यस काफी तूफान को स्टार्ट हो चुका है। बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत सारे इसमें अपने इंजीनियर, अपने सॉफ्टवेयर लोगों को काफी चेंजेस आने शुरू हो गए। एक सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है कि जितने भी पहले एआईज आई है मार्केट में, उन सब में एक डिफरेंशिएशन पार्ट ये रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज को ह्यूमन ने डेवलप किया। हम ही में अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में कैसे एल्गोरिथम आने हैं, तो पूरी टीम बैठती है, पूरे लोग बैठते हैं। गूगल की कैसे सर्च के रिजल्ट बेटर दिखाने हैं, तो गूगल की पूरी एक टीम बैठती है, रिसर्च की टीम बैठती है जो पूरी रिसर्च करती है कि ये कैसे और उसका बेटर एक्सपीरियंस आ सकता है। बट अब जो टेक्नोलॉजी आती है उसका इशू ये है कि चैटजीपीटी वगैरह में जैसे कि आपने भी क्वेश्चन किया और उसने भी क्वेश्चन का आंसर दिया, तो होगा क्या सर कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया, आपने सीखा, बट ऐसी क्वेश्चन अगर मार्केट में 50 लाख लोगों ने किया तो उसको पता चलता है कि कौन सा आंसर बेस्ट आना चाहिए और कौन सा आंसर बेस्ट है उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप उसके बाद फर्दर 4 क्वेश्चन और पूछ रहे हो उससे, तो इसमें इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी जो बिग पॉइंट है कि ये अपने आप ही सीख रही है, सिर्फ आपकी सिखाने से नहीं सीख रही है। आपके जैसे 50 लोग जो बैठे हैं जो डाटा फीड कर रहे हैं वो उसको और इनपुट दे रहे हैं कि भैया मैं जैसे इनपुट दे रहा हूं ऐसा तो अच्छा मुझे ये चीज क्वेश्चन पूछा तो ओके, अब मुझे समझ में आ गया, अब लगता है कि मैं इस चीज को और सीख सकता हूं। जो पहले रिसर्च की टीम होती थी, आजकल हम सारे ही उस रिसर्च का पार्ट है क्योंकि हम उसको भी फीड कर रहे हैं, हम उससे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज के टाइम पे उसको बोलता हूं कि सीवी मेरा बना के दे, ऐसे अगर आप लोग पूछते हैं तो उसको पता चलेगा सीवी बनाने के लिए ये चीज देखनी होती है, उसको ऑटोमेटिकली कोई ट्रेन नहीं कर रहा होता है, ट्रेन होती है। दिस इज आल्सो द बिग थिंग जो आपकी एआई टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं, इट इज फार सुपरसोनिक स्पीड पे वो अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है। चैटजीपीटी ने बताया कि एआई पावर चैटबॉट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अंडरस्टैंड करता है, फोन करता है यूजर सर्विस को। एंड चैटजीपीटी में जो
डाटा एनालिटिक्स यूज की गई है। इसका सिस्टम ऐसा है कि ChatGPT में बहुत सारा डाटा उठा के उसके अंदर फीड कर दिया गया है मिलियन डाटा को। उसके बाद उसको उस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि आपके ऊपर क्वेश्चन करता है तो आपको क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, कैसे बेटर आंसर करना है, एंड इट इज रियली इम्प्रूविंग। मतलब अगर आप उससे ChatGPT से आज आप ये पूछोगे मुझे फॉर्म कैसे बनाना है तो वो लिख देगा सॉरी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो धीरे-धीरे और इम्प्रूव होता जा रहा है। एंड जो ChatGPT की सबसे खास चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इस AI टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि आप ChatGPT से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। सो इट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट माइंड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था चिराग और अर्जुन का कि जब वो अर्जुन निकल गया तो आप उससे क्या बोल रहे हो वो वैसे एक्ट करेगा। आप उससे कुछ नहीं बोल रहे तो चुप बैठा है, जैसे आज के यूज नहीं कर रहे हैं उनको चुप बैठा है। लेकिन जो लोग उससे इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन वो उसी तरह से उसको ट्रेन किया गया कि वैसे ही आंसर दे। जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज आप उससे कहीं मार्केट में जाओ, बोलो किसी कार के शोरूम में जाके उसको बोलो कि मुझे कार चाहिए, तो वो अपने हिसाब से बोलेगा अच्छा इन लोगों को लगता है कि आज के टाइम पे मार्केट में कार जो है ज्यादा मारुति चलती है, 80% लोग मारुति लेते हैं, तो वो जाके आपको मारुति कार दिखा देगा। बट अगर आप उसको ये बोलोगे कि कौन सी कार, कौन सी मुझे रंग की चाहिए, मुझे कौन सी ब्रांड की चाहिए, मुझे कितने बजट में चाहिए, मुझे किस टेक्नोलॉजी की चाहिए, मुझे यूरो 1 चाहिए, यूरो 2 चाहिए, तो जितना आप उसे स्पेसिफिक बता पाओगे उतना आपको उतना ही बेटर रिजल्ट आज के टाइम पे दे पाएगा। किसी भी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हमें यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, और जितना हम इसको यूज करेंगे उतना उसके अंदर वो सीखते जाएंगे कि हम इस टेक्नोलॉजी को और बेटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस केस में प्रॉम्प्ट का बहुत यूज है। प्रॉम्प्ट मीन आस्किंग, मैं उससे क्या बोल रहा हूँ। तो प्रॉम्प्ट शुड बी वेरी क्लियर, स्पेसिफिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। इन सभी चीजों को थोड़ा सा मैं बेस बना के आई विल डू बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, जिससे आपको लगेगा कि कैसे डिफरेंस आता है और क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको। सर AI फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर इतना डाटा है, आप उसके अंदर कुछ भी पूछ के देखिए आपको सब बताएगा। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आप उसको यूज करना सीखते जाएंगे, आप बेटर पूछने जाएंगे कि मुझे क्या पूछना है, प्लस जैसे जैसे वो इवॉल्व होता जाएगा उसको खुद पता चलेगा अच्छा मेरे 50 क्या वो लोग ये चीज पूछ रहे हैं तो मुझे उसका क्या बेटर आंसर चाहिए, क्या बेटर मुझे आंसर उसका देना है। तो इसमें मतलब बेस क्या है, मतलब डाटा इसके पास डाटा है, मतलब समुंदर है डाटा का, समुंदर है, और इसमें से एनालाइज करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको फर्दर और ले जाता है। जैसे कार है, कार में हमने कहा भाई हमारे को माइलेज के हिसाब से चाहिए, तो वो एनालाइज करेगा कि किस गाड़ी की माइलेज अच्छी है, उसमें वो हमारे को ऑप्शन दे देगा। बिल्कुल उसमें हमारे को ऑप्शन दे देगा कि हमें क्या गाड़ी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ सर कि इतना मिलियंस ऑफ डाटा उसके अंदर फीड किया गया, ट्रिलियंस ऑफ डाटा उसके अंदर फीड किया गया, उसको इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि वो सब जानता है। जैसे गूगल आज के टाइम में आपके जानते हैं, वो सब जानता है कि आपको किस तरह का क्या आंसर चाहिए। तो बेस इसका एनालाइज ऑफ डाटा, बेस तो यही हुआ ना। बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें फीड किया गया, आपने कहा फीड किया गया डेटा, ये फीड थोड़ी ना किया होगा, ये तो जितने भी वेबसाइट से उनसे डेटा कैप्चर करता हो। हाँ मतलब कैप्चर करके उसके अंदर फीड किया ना, वहां से डाटा उठाया है। हाँ फीड नहीं है, इज इट फीडिंग ऑफ डेटा और टेकिंग द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट? एक ही बात है सर, डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। नहीं सर देखो फीडिंग मींस आपने किसी जगह पे स्टोर किया, मतलब ChatGPT का अपना सर्वर है जहाँ पे मिलियंस ऑफ टेराबाइट डेटा स्टोर होगा, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं सर पॉसिबल है, यही चीज है। उन्होंने उसको पहले एक टाइम पे ताकि फीड नहीं किया था, साथ आता जहाँ से उनको जाके मिला, वेबसाइट से मिला, कहीं से उनको मिला कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने जब मॉडल डेवलप किया था डॉक्यूमेंट से जाके उसको सेव किया, तभी उन्होंने उसके अंदर 2021 तक या 19 तक उन्होंने उसके अंदर वहाँ पे फीड, उसके बाद नहीं, उसके बाद फीड नहीं है। 2001 सितंबर तक हमारा फीड है, उसके बाद फीड नहीं है। इसके ऊपर मैं भी आऊंगा, इसके ऊपर भी आऊंगा। डाटा उन्होंने एक टाइम तक का उसके अंदर फीड कर दिया, आपको एक ट्रेनिंग दे दी। जैसे मान लो हमारा सी का कोर्स है, एक सी का हमने कोर्स बना दिया और वहां तक उन्होंने डाटा उसके अंदर फीड कर दिया। ये कोर्स का करिकुलम है, अब तुम इसके अंदर से सीखते जाओ, करते जाओ और अपने आप को इम्प्रूव और करते जाओ। धीरे सर अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस रैपिड स्पीड से चेंज हो रहे हैं
और कैसे हमें इसके ऊपर अपडेट रहना है और कैसे मार्केट एकदम से चेंज हो रही है उसके अंदर, और फिर धीरे जाएंगे तो ओवर करता रहेगा। थोड़ा वेट करें ताकि वो सस्पेंस भी रहे। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। दिस इज एआई के जो टूल्स हैं मार्केट में वो कैसे हैं और क्या क्या नोट कर लिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिए कि फाइनेंस के फील्ड में भी क्या क्या और फाइनेंस की फील्ड के अलावा भी किस तरह की एआई की मार्केट आ गई है, क्या क्या इस तरह पॉसिबल हो पा रहा है। एआई का बेस लैंग्वेज क्या होगा? एआई की लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के अंदर इसको जो इसके एल्गोरिथम्स हैं या जो भी इसकी कुछ से कोडिंग है वो कौन से उसमें डिजाइन की होगी? सर कोडिंग तो सर जो उनका जो अभी एआई इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इतना टेक्निकल तो सर अभी सी प्लस प्लस जावा इसका सर बेस ये अगेन इस कोडिंग के अंदर होने की है, बट इस टेक्नोलॉजी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज जो है हम अगर इंग्लिश को लिखते हैं तो इससे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। माइंड की ब्रेन की बात करते हैं, न्यूरॉन्स हैं हमारे उस पे काम करते हैं, आपस में लिंकेज है। सेम में कोई तो इसका बेस कहीं कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे ये एआई जनरेट हुआ, जिसके ऊपर जिस पे काम हुआ, जिसे एआई बना। हाँ जी सर। तो वो क्या होगा, वो क्या है? ये सारे सेम लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे चैट जीपीटी है, इसके अलावा बहुत सारे है क्या डिफरेंट सर हमें मैं बता रहा हूँ इसकी पीछे की लैंग्वेज का नहीं आइडिया, बट जो हमें इंटरेक्शन करने के लिए जो लैंग्वेज मिलती है वो दैट इज नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस है। हाँ यूजर वो तो आपका फ्रंट में अलग है, जैसे विंडोज में यूजर इंटरफेस करते हैं, बैकएंड पे ऑल टुगेदर डिफरेंट सब चीजें हैं। उसका कोई बेस है, कोई जावा है, कोई डेटाबेस है, डीबी है। सर वो कह रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी का टेक्निक फीचर की क्या टेक्नोलॉजी यूज की है पर्टिकुलर को चैट जीपीटी वगैरह, बट जो इस टर्मिनोलॉजी को जो बोलते हैं दैट इज लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम करते हैं, और जो जिस और उसको बोलते हैं डाटा लैंग्वेज को लार्ज लैंग्वेज डाटा मॉडल्स। जो लार्ज लैंग्वेज को डाटा मॉडल्स को डाटा मॉडल्स को यूज करके जैसे हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने है। रोबोटिक्स के ऊपर होता है जो ये टेक्नोलॉजी तो उसमें भी कहीं ना कहीं बेस तो है ना। ये जैसे चल रही है, जावा चलती है, सी प्लस प्लस पुराने टाइम में चलती थी, सी लैंग्वेज होती थी, सारी लैंग्वेजेस होती थी। एआई के टूल्स हैं जहाँ पे भी एआई सिखाते हैं, जहाँ पे एआई डेवलपिंग की बात होती है। एआई कहीं ना कहीं डेवलप ही हुआ है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे डेवलप ही हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये उसकी बेस टेक्नोलॉजी का बेस करूँ यहाँ का जो भी होगा इंटरनेट ये क्या ऐसा ही फीचर की और सिर्फ जो ये टूल्स हमारे लिए यूजफुल हैं डेमो कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपकी पीपीटीज वगैरह हम लोगों की तरफ से डिजाइन होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं देखा सर। अभी हम बोल सकते हैं कि इतना मजा नहीं आया पीपीटी में। हो सकता है इसके कंटेंट को लेके बोलेंगे मैं कैसे वर्ड बना सकता हूँ, बट बिलीव मी 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद आपका वर्ड ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास तो इतना डाटा है, आपके पास तो लिमिटेड डाटा है, हमारा तो लिमिटेड ही है ना। तो भी चेंज करके अच्छा हो जाएगा, कोई वर्जन में भी अच्छा हो जाएगा। और धीरे धीरे अभी भी एक साइड है, ऐसे कंपटीशन और भी साइड चाहिए। तो थिंग इज कि अभी धीरे उस एम्फेसिस पे बढ़ेंगे कि 1% यूज कर रहा है और 1% उसको यूज नहीं कर रहा है।
तो आप देखो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा आपकी एफिशिएंसी में, आपके आउटपुट में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा कि आपको मतलब अल्टीमेटली आपकी चीजों को सीखना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट नाउ, अभी से क्यों नहीं है इसको, ठीक है। ये सिंपलीफाइड में सर छोटा सा एग्जांपल दिया था यार मैंने कि कैसे एक टूल्स किस तरीके से हो सकता है। मेरे को ना आगे पर्टिकुलरली अपने सीएस के एग्जांपल से कवर करने हैं। मैं इन टूल्स की भी स्पेसिफिकली जो मार्केट में टूल्स यूज हो रहे हैं, कंटेंट के यूज हो रहे हैं, यूट्यूब में आपको कैसे वीडियो बनानी है वो यूज हो रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे कैसे कंटेंट डालना है वो सब यूज हो रहा है, एंड नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बनानी है, सब तरह के टूल्स मार्केट में यूज हो रहे हैं। तो उन सब के लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। अभी अगर आपके टाइम बचा तो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई मेरे सीए का पर्टिकुलरली एग्जांपल देने का हुआ है तो थोड़ा बिगनर रह जाएगा। बट आई सेइंग कि चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम जुलाई में सेमिनार दिया था गुड़गांव में, तब बार और क्लाउड करके ये लार्ज मॉडल से नहीं आए थे। जब मैं कल अभी 2 महीने पहले मैं जब गार्ड का सेमिनार किया तो बाहर आके हुआ था क्लाउड नहीं था। 3 महीने के बाद क्लाउड के आगे होता है इट इज नेवर एंडिंग। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे अपने यूज कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि अगर 3 महीने में हमने उसको नहीं देखा तो कुछ पूरा नहीं मिल जाएगा। इवन मैं भी जो काफी एंथुसियास्टिक चीजों को देखने में जब कोई कस्टमर से नहीं देख पाता लगता है बहुत सी चीजें मिस हो गई अभी इसके अंदर, जो कुछ और भी कुछ नहीं आ गया। तो पहले मुझे देखा कि मैं कहता हूँ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले तो हमने बोला कि हम क्वेश्चन है ना, हम क्वेश्चन अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। अब आपका और मेरा जिन लोगों का दिमाग चलता है उन्होंने बोला यार जैसे मैं भी आई थिंक कौन बात कर रहा है कि हम इससे और लेजी हो जाएंगे। अभी तो सब आ गया कि वो देखना होता है क्या। लोगों ने सोचा कि यार क्वेश्चन भी क्यों नहीं बनाया जाए ना, एग्जाम करते हैं क्वेश्चन भी बने मार्केट में बन सकते हैं, फिर क्वेश्चन का भी एक बना देते हैं। तो देयर आर वेबसाइट नाउ कि जहां पे आपको क्वेश्चन भी बने मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी पर्टिकुलरली फील्ड से फिर से बोल रहा हूँ, अभी इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं है, अभी इतने लेवल पे नहीं है कि आप बोलोगे यार इससे बड़ा क्वेश्चन आपको बना देता। पर ठीक है, इट विल मैटर ऑफ टाइम, दोनों ही 3 मिनट आने वाला टाइम ऐसा है कि आपको क्वेश्चन भी उस एल्गोरिथम से क्या पूछना है, क्योंकि आपके मेरी स्कोर लिमिटेड है। मैं और आप सब एक ही जितना मैंने पढ़ा मैं उतना ही सोच पाऊंगा, एक मेरा जो ग्रेजुएट है उतना ही सोच पाएगा, और मेरे सोचते हैं कि इनका एक्सपीरियंस 20 साल ज्यादा हो वो उतना बेटर सोच पाएंगे। बट कभी भी हम कंबाइन जो उसके अंदर फील्ड है उससे बेटर नहीं सोच पाएंगे। तो जब वो क्वेश्चन मार्केट में आप अपने जब फॉर एग्जांपल मैं भी करता हूँ कि बहुत मुश्किल से क्वेश्चन बनाया या ऐसे ऐसे चीजों को मैं इसलिए क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आप बार बार कौन बनाएगा उस क्वेश्चन को। एक तरीके से जैसे आप एसक्यूएल लैंग्वेज में बात करो कि आप उसको क्वेश्चन को सेव कर लो, और देन अगर आप सेव भी कर रहे हो तो मार्केट में उसको भेज दो कि यार एटलीस्ट जो आपने पहले मेहनत कर लिया क्वेश्चन के ऊपर, आपको क्वेश्चन के ऊपर मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे मुझे बना दे दे, मैं क्वेश्चन भी वहां पे जाऊं और क्वेश्चन भी डाल के मैं अपना उसका आंसर दे दूं। चलो यहाँ तक भी बात की थी, जो क्वेश्चन भी बना के दे दिया। अगर मुझे क्वेश्चन भी नहीं लेने, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन भी कोई मेरे लिए और बना दे और ठीक कर दे। अब वेबसाइट ऐसी नहीं है, पहले आपको ढूंढ ढूंढ सकता प्रॉम्प्ट परफेक्ट करके है, जहां पे क्या है आपका क्वेश्चन क्या परफेक्ट होना चाहिए पूछने के लिए, तो आपको क्वेश्चन बना के देगा। अभी ये एग्जांपल दे सकते हैं। टूल्स आर फ्री और पेड टूल्स? सर ये टूल्स अभी कुछ फ्री हैं, फिर ये पेड़ों पे ले जाएंगे, फिर एक बार आपके यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो पे करना पड़ेगा। जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, पहले उन्होंने फ्री का लोन पार करवाई एंड अल्टीमेटली इमेज को
आपसे पैसा ही नहीं है। पेड़ कितने बनाने होते हैं? हाँ जी पेड़ कितने बनाने होते सर, डिपेंड करता है कौन सा टूल कर रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी है, आई थिंक अभी 1700 रुपये कुछ महीने के हिसाब से चल रहा है। एंड ऑब्वियसली मेरे हाथ में महीने के तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और जैसे आपने एक बार चैट जीपीटी को यूज करने शुरू कर दिया, आपको लगेगा मैं तो मानता हूँ 10,000 देने को लगी, इतना उसका एडवांटेज है यूज करने का। और धीरे और नए फीचर देता है उसके अंदर आपके। इसका मैंने आई थिंक कुछ चेंज किया है। मैं पे आता हूँ आपको मिल कर। अब एआई टूल्स तो आ गए मार्केट में, तो एआई टूल्स का अमेज़न भी आना चाहिए था। अब कुछ ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने एआई टूल्स की अमेज़न बना दिया है। यहाँ पे आइए, आप देखिए आपको कौन सा एआई टूल आपके लिए परफेक्ट पड़ता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थिंग्स आर एडवांसिंग इन दिस डायरेक्शन कि जहाँ पे आपको एआई टूल कौन सा चाहिए उसके लिए भी आपके पास वेबसाइट आनी शुरू हो गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। पहले आपने लैंग्वेज मॉडल दिया, फिर आपको पता लगा मैं क्वेश्चन बनाने नहीं आते, तो मैं काम करता हूँ क्वेश्चन बनाने से सीख लेता हूँ। फिर मैं क्वेश्चन के लिए मैं बाद में मेहनत क्या करूंगा, मैं काम करता हूँ क्वेश्चन जो है मार्केट से कहीं ला के ले लेता हूँ। आप क्वेश्चन मेरे मार्केट से ले लिए, तो यार वो मुझे मजा नहीं आया, तो मेरी गलती मेरी ठीक कर दे। इंटरफेस चेंज हो गया, तो थोड़ा सा मैं भी अपनी लास्ट में दिखाऊंगा। ये तो आप जैसे इसमें डालते हो कि मुझे एक 80C की डायरेक्शन बता रहे, तो आपको बता देगा, उसको ये करेक्ट कर देगा कि 80C में मुझे ये 5 पॉइंट चाहिए, आपका क्वेश्चन भी करेक्ट कर देगा वहां पे जाके। This ChatGPT is best for what purpose? सर ChatGPT को किसी चीज के लिए भी चाहिए, मतलब आपको कुछ भी सर्विस इंडस्ट्री से लेके कुछ भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, जैसे आज गूगल है सर, आप गूगल आप किसी के लिए करते हैं तो सर्च इंजन है, that's it. तो किस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है, किस चीज के लिए बेस्ट है, किसी चीज के लिए सर्च इंजन है, वो तो पूरे हर चीज के लिए बेस्ट है। तो वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, वो तो बनाने के लिए वो सर्च इंजन है। चैट जीपीटी मतलब सर्च इंजन नहीं है ना। चैट जीपीटी भी आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है। अब पर्सनल असिस्टेंट से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसकी उसमें क्या टेक्नोलॉजी उसमें क्या वो होती है। तो मैंने आपको बोला कि एआई की भी केसेस आ रहे हैं। चैट जीपीटी कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीपीटीज। नहीं पीपीटी वो कंटेंट बेसिकली कंटेंट के लिए, क्वेश्चंस के आंसर दे देगा, बेसिकली कंटेंट के लिए, कंटेंट राइटिंग कंटेंट राइटिंग के लिए। बट उसमें भी इंप्रूवमेंट हो रही है। और इसमें कंसेप्ट आता है प्लगइन्स का। जो चैट जीपीटी है, जो चैट जीपीटी ने क्या किया है, प्लगइन्स को यूज करता है वो, ठीक है। तो प्लगइन को साथ में ऐड कर दीजिए। अभी पीपीटी के लिए नहीं है, तो ऐसे प्लगइन को यूज बना रहा है कि जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा तो कंटेंट के साथ तो आपका प्लगइन अगर यूज कर रहे हो तो धीरे पीपीटी भी वहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। मल्टीपल एआई जितने भी टूल्स है, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। करेंगे दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस व्हाट यू से प्लगइन्स। प्लगइन्स कि आपको साथ में इंटीग्रेट दे दिया, वहाँ पे आपको प्लग दे दिया, इस प्लग को ऑन करो तो वाला फीचर भी आप वहीं यूज कर सकते हो। उसके लिए चैट जीपीटी कर यूजिंग दैट प्लगइन्स कैन बी प्रिपेयर पीपीटी यूजिंग नहीं सर, अभी जीपीटी का नहीं। सो अभी किस एक्सटेंट तक ये चैट जीपीटी काम कर सकता है, मतलब क्या-क्या प्लगइन्स है इसमें? अरे सर उसको भी इजी आ रही, काफी कंटेंट पे काम कर सकता है, हमारे चीजों को एनालाइज कर सकता है। तभी बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, यू विल सी कि कहाँ कहाँ से चीज से कहाँ पे हम पहुँच गए हैं और कहाँ पे उनका और नेक्स्ट लेवल आ रहा है। मैं जैसे ही मैं सेमिनार का टाइम आता है 2 महीने 3 महीने बाद तो कुछ नहीं आ जाता है उसके अंदर। सही मतलब चैट जीपीटी में कुछ नहीं आ जाता है। पिछली बार क्राउड आ गया, इससे पहले बाढ़ नहीं था तो बाढ़ आ गया। अब वो भी कंपटीशन में बहुत सी चीजें खुद ही उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। तो सर पता नहीं नेक्स्ट टाइम जब कभी करना हो कुछ ऐसा हो तो पीपीटी बनने की शुरू हो जाए तुम्हारी। अभी सपोज डेटा को एनालाइज करना है तो चैट जीपीटी इज अ गुड टूल टू एनालाइज डेटा। बिल्कुल सर। सपोज आई आस्क कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर स्टॉक है, सपोज मैं किसी स्टॉक के बारे में लिखता हूं तो उसका एनालाइज करके देगा वो। बिल्कुल यार।
प्रीवियस डेटा भी मतलब फ्यूचर भी एनालाइज कर सकता है उसका मतलब आगे सर, प्रेडिक्शन कैरेक्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर स्टॉक मार्केट भी करते नहीं सर, प्रेडिक्ट फ्यूचर नहीं, जैसे आप एनालिसिस करते हो, आप एक आपके पास एक पास्ट का डाटा होता है, हाँ। आप एक प्रेडिक्शन लेते हो फ्यूचर की, तो मेरे को ऐसे फ्यूचर उसमें काम करना है, हाँ। तो वैसे ही उसके पास जो डाटा है, उसको जो पहले ट्रेनिंग मिली हुई है, हाँ। कि इस तरह से तुम प्रेडिक्ट कर लेना, अगर तुम्हारी सेल 10 तारीख को आज 11 12 13 दिखाने है, तो प्रेडिक्ट कर लेगा, आप उसको पैरामीटर दो तो पैरामीटर के हिसाब से भी कर लेगा। ultimately intelligence का purpose क्या है so that we can make decision based on the past data बिल्कुल। similarly if I ask some questions so he can predict future he can take decision तो based on प्रेडिक्ट फ्यूचर में बोल रहा हूँ, प्रेडिक्ट फ्यूचर की डेफिनेशन मुझे नहीं होती है, हाँ। प्रेडिक्ट फ्यूचर तो सब कोई आपको बहुत याद है, पता he नहीं can analyze सर, data पास्ट डाटा के बेस पे जो भी फ्यूचर में उसको लगता है, हाँ। जो ट्रेनिंग उसको दी गई है, हाँ। उसके बेस पे वो कर सकता है, तो फाइनेंशियल डेटा इंक्लूजन सब कुछ वो उसको एनालाइज कर सकता है और प्रेडिक्ट कर सकता है कर सकता है। फिर बोलो सर, अभी किस लेवल पे जाके कर रहा है, किस मतलब हो सकता है कि आप बोला इतना मजा नहीं आया एनालाइज करने का, जिससे एनालिसिस नहीं आती है, जिसके बाद में ट्रेन जो डाटा पड़ा हुआ है, जिसको ट्रेनिंग मिली है, सपोज एक बंदे को ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली, हम एग्जांपल की ट्रेनिंग मिल रहा है, किसी बंदे को अच्छी ट्रेनिंग मिली है, तो अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है, जिसने अच्छी तरीके कैरी करी है, जिसने नहीं करी वो नहीं कर सकता। बट मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि थिंकिंग से कितनी जल्दी सीख रहा है और क्या क्या वो सही डाटा है और क्या ये आज जो कर पा रहा है क्या वो इस साल के बाद नहीं करेगा। मैं सिर्फ उस चीज बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपको ऐसा है कि मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को मुझे तो नहीं लगता है थोड़ा सा बेटर कर सकता था इस चीज तो को। किसी बैलेंस शीट को मैं अगर इसमें पुट इन करूँ सारे उसके रेशियोज वगैरह को सर अभी नहीं, मैंने नहीं कहा है, Nothing like लेकिन सिंपल चीजों को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। अभी दिखाता हूँ, अभी करता दिखाता हूँ। लेकिन सर इसमें फिर क्या इससे हमें ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ क्या बेनिफिट हुआ मतलब अल्टीमेटली सर अल्टीमेटली टाइम एफिशिएंसी और आपने यूज नहीं किया तो ऑब्वियसली कोई थोड़ा सा मतलब बेसिकली तो एनालाइज ही रहा ना इसमें, मतलब फर्दर कोई डिसीजंस वगैरह तो इसके बेस पे नहीं हो सकते। डिसीजन अगर आप बोलोगे कि मुझे डिसीजन बता दे तो बता तो आपको कौन देगा, तो वो सही है नहीं है वो तो आप नहीं सेकंड चीज सही है नहीं है दूसरी चीज आपको बाद में लेनी है। वो डिसीजन को देखो अल्टीमेटली हमें ही लेना पड़ेगा ना वो। अगर आप बता दो कि रेशियो खराब हो रही है तो रेशियो की खराब होने से एक चीज खराब हो जाती है। सिंपल सॉफ्टवेयर उसको तो सिंपल सॉफ्टवेयर में डेटा डाल के भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर उसमें तो फर्क फिर नहीं हुआ फर्क नहीं हुआ क्या नहीं सर आप शायद स्टार्टिंग से बात को समझ लीजिए। सीएमए डाटा में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हाँ, तो उसमें वो बताता है बेटर रिजल्ट और उसमें अगर फिगर चेंज करते हैं हम तो वो अकॉर्डिंगली उसको वो अमेंड कर देता है। सर चलिए मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर में हर चीज प्री डिफाइंड है, आपको ऐसे डाटा मिलेगा ऐसा करेगा ऐसी चीज बनाओगे तो ऐसा निकलेगा, बट एआई में प्री डिफाइंड नहीं है, आप उससे पर्सनलाइज जाके कुछ भी जाके काम करा सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल मैं धीरे धीरे आपको मैं और भी लेके आई थी मेरी, क्योंकि जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको एक और अलग करके धीरे समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर हमेशा से जैसे हमने कोई चीज डाली, सॉफ्टवेयर को पता है ऐसा इनपुट आएगा तो ऐसा आउटपुट देगा। आप उसमें 1 लाख 1 करोड़ 1 मिलियन 1 ट्रिलियन डाल दो वो ले लेगा, लेकिन क्या कोई नई चीज कर पाएगा उसके अंदर, वो अपना दिमाग में लगाएगा। सर एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपना दिमाग लगा रहा है, जैसे हमारा दिमाग लगता है अच्छा ऐसी चीज तो कैसे कर सकता हूँ क्या, उस तरह की इंटेलिजेंस यहाँ पे फील हो चुकी है। तो इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आंसर इनके पास डेटा नहीं है तो वो खुद भी कुछ डेवलप करके अपना कुछ आंसर दे। सर डाटा तो उसके पास तो है, उसी के बेस पे करेगा वो। कई बार उसको बोलते हैं हेलुसिनेट बोलते हैं। अगर उसके पास आंसर नहीं है, जैसे आपने बोला कि यार अब मुझे भी गोवा जाना है, उस तरह का कुछ एग्जांपल कुछ भी आपने उससे पूछा कि उसके ना होटल वगैरह सर्च करके बताओ, उसके पास का डाटा नहीं होगा। या फिर एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल कि ताजमहल जयपुर में है, जरा मुझे उसका ताजमहल का बता दो रास्ता क्या है, उसको नहीं पता। तो जैसे हम लोग करते हैं कि हम अपनी कहानी बनने शुरू कर देते हैं, फिर कहानी बनने शुरू कर देगा, अरे ताजमहल ना जयपुर में यहाँ पे जगह पे जाओगे तो यहाँ पे है, विच इज आल्सो इंप्रूविंग डे बाय डे। जैसे जैसे उसके अंदर और जैसे उसने हेलुसिनेट करा, उसने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो आपको लगता है कि भी नहीं सही है, आप बोलोगे आंसर सही नहीं है, ओके गॉट इट, तो नेक्स्ट टाइम से किसी दूसरे बंदे को भी वैसे नहीं दे। बट क्या ये चीज सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि मेरा पर्सनलाइज जो चीज है, मैं मुझसे चीजें पूछ रहा हूँ, वो पर्सनलाइज चीजें आपको नहीं करके दे सकता। अभी तो इसके अंदर बहुत काम होना है, इसका मतलब तो अभी सिर्फ काम ही होना है। अभी मैं कह रहा हूँ जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दे दिखाऊंगा
अभी आपको कॉन्ट्रोफैक्ट दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, तो जैसे कि आप कहोगे अभी इतना ही काम हो चुका है सर, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो अभी तो बिल्कुल अभी तो स्पीड पकड़नी शुरू करिए तो उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं सर, टाइम नहीं होगा, स्टार्ट एज में थोड़ी थोड़ी रेस्ट मिलनी चाहिए। चलो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को स्टार्ट करूं। जो लोग पेड वर्जन यूज नहीं करते हैं उनके पास 3.5 वर्जन होगा, और जो पेड वर्जन करते हैं उनके पास ChatGPT 4 वर्जन यूज होगा। ठीक है, 3.5 में ये कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जो उसमें एडिशनल नहीं है। ब्राउज विल बी एडवांस्ड डेटा एनालिसिस प्लगइन्स तो डायरेक्ट फ्री। इनका भी मैं एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। जो मैं आपको बोला था इसमें एक दिक्कत सबसे पहले ये थी कि जिसमें डाटा यूज हो रहा है, जो लास्ट है प्लगइन्स के नीचे डालने चाहिए, क्या चीज है? सर ये इमेजेस क्रिएट कर देता है, इमेजेस क्रिएट कर देता है। जो उसको बेस्ट समझ में आता है, जो इसमें डाटा जो क्रिएट किया गया है, इसमें क्या है कि मिलियंस और मिलियंस इमेजेस क्रिएट कर दी गई हैं और बताया गया है कि अगर टारगेट मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या कहते हैं बिल्ली है तो ऐसे दिखती है, बिल्ली के एग्जांपल आप उसको दे दो 1000 इससे मिल सकती है, उसको समझ में आएगा कि बिल्ली ऐसी दिखेगी। तो जैसे आपको उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे ऐसी इमेज बना के दे दे, तो जो इसका डाटा फीड है उसके हिसाब से उसकी इमेज क्रिएट कर देगा आपको। प्रीडिफाइंड डेटा, प्रीडिफाइंड इमेजेस के लिए। सर प्रीडिफाइंड इमेजेस नहीं है, प्रीडिफाइंड डाटा है, प्रीडिफाइंड डेटा है। डेटा है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे एक इमेज बना के दो कि जिसमें एक गधा एक बिल्ली के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो बना देगा। अगर मल्टीपल पर्सन सेम क्वेश्चन पूछे तो सबको सेम आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम लोग भी सिलेबस नहीं रहते, ये चीज के मेरे इसकी मेजर है। नहीं, मैं जो समझाऊं इमेजेस का मतलब जैसे ये पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में जैसे किसी को पकड़ना है, उसने देखा है वो बता रहा है बैठ के कि उसकी ऐसी शक्ल थी, ये थी, वो थी, उसके बेस पे उसका स्केच बना दिया, मतलब ये चीज है। वो भी कर सकता है, बट अभी क्योंकि ये पर्सनलाइज ये डाटा की सिक्योरिटी की वजह से आपको मतलब किसी का पर्सनल फेस वगैरह पे नहीं देता, ऐसे नहीं करते। वही डाटा फीड है जो क्या बोलूं जैसे से मतलब पर्सनलाइज मतलब किसी के फेस डाटा वगैरह पे नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल पर्सनल ही होगा उस चीज के लिए। तो मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सर मतलब ये एआई जो है वो हमारे इंटरनल ऑडिट सर्विस में कॉम्पिटिटर आएगा। सर सब जगह आएगा, बहुत चीजों पे आएगा। सर सब जगह आएगा, अभी आप देखते जाओ। अभी तो एंकर और नॉट ओनली है सर, अभी तो मैं कह रहा हूं इस सेशन का नंबर कर सकता है कि मैं 3 घंटे बोलूं तब भी आप लोगों को इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। अभी जो मैं टॉपिक यहां पे कवर नहीं करूंगा, एक तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए है एक्सेल में कैसे यूज होता है ChatGPT इन एक्सेल, और अब वो तो उनके सेमिनार में तो ChatGPT एक्सेल में क्या कर सकता है। हम तो वही सीखने आए थे, एडवांस एक्सेल में चैट। चलो तो बाकी ये भी आप चीजें इसे टेकअप कीजिए। हां जी मतलब वही यूजफुल है हम लोगों के लिए। सर ये यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। अभी आप ये भी चीज देखते जाओगे तो बहुत यूजफुल लगेगा आपको। वो एक बात है, अगर आपको सर एक पार्टी यूज करना है तो चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि होल सिनेरियो है क्या एक्चुअली है क्या। तो क्या किसी को भी समझ नहीं पाओगे, आप क्या लगोगे कि ये भी सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं। एनीवे तो ये समझ में आ रहा है? फिर एक टेक्निक को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया, सिंपल प्रॉम्प्ट। मैं आपको सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूं। ऐसा आंसर आता है गूगल में, ChatGPT में आता है। ChatGPT में आता है, पर्सनली आंसर यहीं से आता है। हमें बताते कि सबसे लास्ट में एक डिस्क्लेमर भी आता है। हां बिल्कुल तो डिस्क्लेमर डालेंगे तो सबसे रंगों की ये लास्ट में डिस्क्लेमर, हर एक क्वेश्चन के आगे आपको डिस्क्लेमर मिलेगा। सर मैं पास से लास्ट में करना चाहता था, लेकिन आपका को ये इशू ने किया सर अब तो लाइन धीरे आपके पास ऐसा आएगा कि यार मुझे तो ज्यादा पता है ChatGPT से, तो बता दे आता है सर, ऐसे ही आता है। ऐसे ही आएगा। और समटाइम्स मैंने डाल के देखे, टेक्स्ट की क्वेरी डाल के देखे इसके अंदर,
इतना बढ़िया आंसर देता लगता है यार फिर सही में टैक्स पढ़ने की जरूरत की या नहीं थी। लेकिन झूठ वाकई में इसलिए है कि वो इन्वेंटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अभी सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमें नहीं को रीड कर ले, पता नहीं जब वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा। और अभी तक सर अगर मेरा दुनिया से यूज करता है क्या जीपीटी को जो मैं यूज करता हूँ तो मैं मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कैसे पूछना है, क्या पूछना है, किस सेक्शन के बारे में पूछना है। अब सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वो अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में देख लेते हैं। यू आर वेल नोन सीए फर्म प्रैक्टिसिंग इन इनकम टैक्स फॉर 50 इयर्स। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें सीए फर्म को बड़ा सा एक्सपीरियंस है, कुछ छोटी मोटी सीए फर्म नहीं है। क्रिएट ए कंप्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग इन इंडिया। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो बताओ, कैटेगरीज अलग से डिफाइन करो, मेक श्योर टू क्वाइट ऑर्गेनाइज लिस्ट बनाओ। प्रिपेयरिंग टेबलर फॉर्म मुझे ऐसे मत दे दो, मुझे भी बना के दो पूरा का पूरा सिस्टम में। Feel free to fill any ad or service details. ये तुम अपने आप याद करके मुझे छोड़ देते हो। अब मैंने तुमको बहुत स्पेसिफिक करके बताया कि इस तरह की कार चाहिए, इस तरह का टेबल चाहिए, इस तरह की मेरे को डिटेल चाहिए। आ रहा है कुछ बेटा? अभी वो नीचे भी है, अगर नीचे भी हो अभी जनरेट कर रहा है वो, नहीं करे कुछ बात। अब खत्म। ये तो आपने बिल्कुल स्पेसिफिक उससे पूछ लिया। तो मैं डिफरेंस बता रहा आपको कि स्पेसिफिक पूछना और नो स्पेसिफिक पूछने में क्या फर्क है। गूगल ऐसा नहीं कर पाए। एंड हमारे पास एक्चुअली एज यही होनी चाहिए कि बीइंग ए सीए अगर कोई क्लाइंट पूछता भी है तो किस तरह की टेक्नोलॉजी सबके पास है, चिराग कोई चुका है, अगर अभी जीनी कोई चुका है तो सबके पास है। मेरे पास नहीं, मेरे क्लाइंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं, सबके पास है। बट अब ये है कि मैं तो ज़्यादा समझ रहा हूँ ना उनसे, तो क्या मैं ज़्यादा बेटर पूछ सकता हूँ उनसे, वही चीज़ नहीं है। क्योंकि सिंपल टेक्निक को भी एक आ जाएगा आपके पास कि मुझे ये पता ही है। थोड़ा जल्दी हो करता हूँ। सीसी को सीरी बनाना है। एक सिंपल सा सीरी का ग्राफ है। इस ग्राफ सीरी का कंटेंट इन इंडिया हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स। स्टॉक जनरेटिंग तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी होता है। ये भी गड़बड़ करता है सर। तो इसमें फॉर्मेट आएगा ना? नहीं सर, फॉर्मेट आएगा, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो बताते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली इससे जो जितने भी आईटी के लोग हैं ये बीटी के कोड वगैरह जनरेट कर लेते हैं। आप एक बार फिर कोड करो कि मुझे इस तरह का कोड बनाना है, तो आपको कोड भी पूरा बना के देना है। आजकल जो वेबसाइट हम बनाते थे, वेबसाइट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट की डिजाइन करके जो आपके लिए बेसिक लेवल की वेबसाइट जो है वेबसाइट वगैरह आपकी डिजाइन करते हैं। सर ऐसे तो हम कॉपी कर सकते हैं। एआई सर एजुकेटेड पीपल्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाए।
बढ़ाएगा और दूसरी चीज क्या बोलूँ कि बढ़ाएगा और उसके डायमेंशन को चेंज करेगा, क्वालिटी इंप्रूव, क्वालिटी उनको वो डायमेंशन चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के टाइम पे जो नए कोर्सेज आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम इंजीनियरिंग, आपको क्वेश्चन कैसे बनाने हैं सर, उसके पास तो पीडीएफ डाटा पड़ा हुआ है, तो उस तरह के कोर्सेज मार्केट में आएंगे। अभी मैं आगे तभी कर रहा हूँ कि आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि चैट जीपीटी का एक्सेल वर्जन आप सीखने आए हो, वो ज़्यादा बेटर आपको शायद लगे एक्सेल से, पर आपको होल तो समझना चाहिए कि एआई कर क्या है हम लोगों के साथ, कैसी चेंज सिनेरियोज होंगी, कैसे हमारी प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे हमारी जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे हमारी फ्यूचर टाइम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। सर टेक्स्ट के रिप्लाई की आपको नॉलेज को देना चाहिए जो आप आजकल ढूंढ के नहीं आते हो। अच्छा सर इसके भी उसके ऊपर आता हूँ। इसमें आपको एग्जांपल याद दिया था कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देने में और जनरल क्वेश्चन देने में कितना फर्क ये ला सकता है, वो आपको एक डिफरेंस मिल गया कि अगर ऐसे हो तो कैसे उसको करना है, इट इज ऑल अबाउट अस तो उसको कैसे उसको क्वेश्चन को पूछना है। नाउ जब मैंने भी जब ये एक दो बजे स्टडी करना शुरू किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तेजी आते चले जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो यार ये बात थी कि डाटा तो सारा फ्री है इसके अंदर, पर डेवलपमेंट करके बनता तो अगर मान लो कोई रीजन डाटा देखना हो, रीजन में कुछ करना हो तो क्या करें, अगर हमने कोई रिसेंटली अगर कुछ ऐसी चीज जो इसके मॉडल में फीड नहीं है तो क्या मैंने क्या हो जाएंगे वहां पे जाके, ये क्वेश्चन आया क्या पहले क्या हो जाएंगे जब हम आज की वही चीज देखनी है, मुझे आज तक कुछ एनालाइज करना तो मैं क्या करूँ, तो मैं जब तक आप तब तक के हिसाब से करूँ, तभी तब से अपना काम कर रहा हूँ। इसमें डेवलपमेंट कैसे आ रही है, इसके साथ पहले प्लगइन्स है, प्लगइन्स वो काम करते हैं जैसे आपको बताया कि साथ में आपने प्लगइन यूज करने शुरू कर दिए तो वो आपकी इंटरनेट की साइट्स को जाके जो उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी पीडीएफ पढ़ा तो लगा के पीडीएफ को जाके एनालाइज कर लेंगे, अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो आपके ऑब्वियसली यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, वहाँ पे नहीं, अगर पब्लिक डोमेन में डाटा पड़ा हुआ तो वहाँ पे जाके उसको एनालाइज कर लेंगे। प्लगइन यूज हो रहे थे कैसे काम टेक्नोलॉजी धीरे और एडवांस हो रही है, अगर आप नहीं कर सकता हूँ इंटरनेट का तो मैं कैसे करूँगा, अच्छा ठीक है प्लगइन निकाल लेते हैं, इंटरनेट में डाटा को एक्सेस कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, और ये सब चीजें आपकी पेड वर्जन में होंगी। मुझे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, अगर मुझे प्लगइन यूज करना है तो, अगर मुझे ब्राउज में करना है, ब्राउज में बिंग की कैपेबिलिटी वही है कि आप अब जैसे रोल आगे के जाके चेंज होंगे, आगे जाके कुछ भी डाटा कोई भी चीज सर्टिफिकेशन वगैरह तो ये कोई भी चीज रहती है सीए करो फिर भी रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऑटो वैलिडेट करेगा। अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि बात सुनते हैं कि जब आर्टिफिशियल गाड़ियाँ आ जाएंगी तो आर्टिफिशियल गाड़ियाँ के अगर एक्सीडेंट हो गया अब किसको पकड़ोगे, ड्राइवर चलाने का, गाड़ी साथ में बैठा है, इसने गाड़ी बनाई है, इसने गाड़ी बनाई है, किसी को तो पकड़ोगे। अल्टीमेटली आगे गवर्नमेंट की ये चाहिए कि सब कुछ क्लीन चीज हो जाए और कोई तो हो बीच में दूसरे को वैलिडेट भी करें। एंड क्योंकि डाटा बेस्ड ड्रिवन मॉडल्स हैं, आगे मैं इसकी कुछ बताऊंगा कि इट कैन बी मैनिपुलेटेड आल्सो। जैसे आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह जैसे आपने देखा हो कि एक एजेंडा पर्टिकुलर ड्रिवन चीजें हो जाती हैं, वैसे ये भी हो सकता है। तो डाटा बेस्ड मॉडल आपको जैसे ट्रेनिंग दोगे कि वैसा अप्लाई करना शुरू कर देगा, तो देयर हैज टू बी सम इंटरमीडिएटली जो बीच में इसको देख सके, चेक कर सके, बता सके कि चीज सही है नहीं है। बट जो काम मैं 10 लोग करते थे आपके स्टाफ में, ऑब्वियसली आप 5 करेंगे, उसके बाद 2 लोग करेंगे, और जो उसको चाहेगा वही कर पाएगा। अभी
अभी मैं प्लगइन यूज कर रहा हूँ, फोर्स पर चल जाए वो। सर आपको लिमिट नहीं है, पहले इसकी वर्ड लिमिट कुछ थी, क्वेश्चन के थी वर्ड है, मतलब राइट कैसे लिखना होगा, बट आप काफी राइट को फैक्ट वगैरह इसमें नहीं दे सकते हैं, ये फैक्ट पेज के बेस पे आप एनालाइज करके बताइए नोटिस लीगल है इलीगल है क्या है। सर फिर कोई भी मेरा प्रेजेंटेशन है पर्टिकुलर डाटा डालते हुए एक बार आप फिर सोचिएगा डाटा वहां पे डालने होगा, क्योंकि वो क्लाइंट का सेंसिटिव डाटा है। लाइट गई है। सारी की सारी आपकी मीटिंग, मेल, गूगल ड्राइव, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपके लिए पर्सनलाइज आ गई है। तो नहीं करता है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, टेक्स्ट का नोटिफिकेशन बाहर नहीं करता, ये वेबसाइट पर कोड है, सीबीएसई की जिसकी गवर्नमेंट वहाँ पे अपलोड है, बड़े प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ पे गया, मैंने तो ये लिखा कि ये लिंक है एंड टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज। मुझे पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को नहीं ढूंढना, मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसके अंदर क्या है। जैसे आपने स्टूडेंट को बोलते थे बता के ये पर क्या है, कि समरी बना दो उसकी, तो ये गया, उसने लिखा कि डॉक्यूमेंट को यहाँ से दिखाया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एग्जाम है, पेज नंबर इसके ऊपर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आईडी कॉलेज ये है, इससे पेज में आपको जाके समझ लीजिए। तो ये उसने एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का बताया, अगर इसके ऊपर और कोई नोटिफिकेशन आई हुई है सर, वो कह रहा हूँ क्वेश्चन जैसे इससे पूछोगे, आप इससे पूछोगे अगर नोटिफिकेशन के ऊपर पर्टिकुलर आई है तो आपको बता देगा, एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर अगर इसमें आगे पूछते हैं। ये तो मैंने दिखाया कि वेबसाइट पर भी जाके तो पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, वहां से उसको जाके उसका डाटा एक्सेस कर सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले जो डाटा इसके अंदर है सर नहीं कर सकते। दैट आई एग्री कि उसने उस पर्टिकुलर पीडीएफ में से जाके उस डेटा को सर्च करके अगर अपना आपको पर्टिकुलर कर पाया, हमारे करेक्टली नहीं कर पाएगा, या हमारी आगे नोटिफिकेशन को नहीं कर पाएगा, या तुम्हें नहीं बना पाएगा, इसको ढूंढने में आजकल कोई नोटिफिकेशन है, कोई सर्कुलर आए, उसमें इतना टाइम लगता है देखने में, बनाने में, करने में, तो कितना टाइम से मिलेगा? तो उसमें एक दिक्कत हो सकती है कि लेटर ऑन वो नोटिफिकेशन रिसेंडेड हो चुका है, तो देन वो कैसे बताएगा? सर तो बताएगा कैसे बताएगा? आप फिर बात है, आप उससे पूछोगे तो बताएगा सर। नहीं आपने जैसे एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर लिखा नहीं सर, मैंने नहीं लिखा। क्या लिखा? नहीं मैंने लिखा है, वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से ही आपने पूछा। नोटिफिकेशन पार्टिकुलरली लिख दिया, उसने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। आइदर वो नोटिफिकेशन लेटर रिसेंडेड हो चुका है, तो देन मैं तो इसके हिसाब से पहली बात आप उसके अंदर क्वेश्चन अलग हो चुका है, तभी तो सीएस की वैल्यू है, तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। चैट जीपीटी की कर रहा हूं ना इस समय हां, कि आइदर लेटर रिमेंडेड हो चुका है या वो रिसेंडेड हो चुका है, तो देन उसके बारे में वो कैसे बताएगा? आप उसमें वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ही नहीं रेफर करोगे ना, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछोगे उससे कि टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ एजुकेशन सर्विसेज, उसमें कुछ चेंजेस हो गए नोटिफिकेशन, वो सब बताएगा उसके अंदर आपको। नहीं नेक्स्ट आप नोटिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन को रेफर कर दिया है, आप नोटिफिकेशन रेफर नहीं करोगे। आप नीचे सर देख लेते हैं, सर देख लेते हैं, सर देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली बताता जाएगा। सर देख लेते हैं, हो चुका है सर बिल्कुल बताएगा। सर देख लेते हैं ना, इसके ऊपर लिख दिया मेरी नोटिफिकेशन में। I have not received any further notification. सर फिर सर बोले कौन कह रहा है कि 100% करेक्ट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कितना आ चुका है और कितनी जल्दी जा सकता है सर आगे। एटलीस्ट आपको एक बेस तो मिला,
लोग खुद सर्च करते हैं, आज ये काम 10 दिनों में होता है, 1 दिन में हो सकता है। और जैसे जैसे मेरा ओवर जाएगा, जैसे जैसे इसका नो टेक्नोलॉजी आएगी, ये अपने बता देगा सर, नोटिफिकेशन ये कौन सी नहीं आएगी। सर एक क्वेश्चन यहीं पे अभी आप सामने पूछो, वही नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 रिगार्डिंग GTA, और उसके बाद उससे वही पूछते हैं कि GTA के ऊपर कोई और नोटिफिकेशन है या नहीं। क्वेश्चन भैया आप मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अभी क्या हमें दिक्कत आई, एक बड़ी दिक्कत आई हमें ऑडिट के टाइम में, जैसे अपना GST का ऑडिट चल रहा था, तो क्रेडिट नोट के ऊपर दिक्कत आई हमें ऊपर। हमारे को क्या हुआ कि सुप्रिटेंडेंट ने चीज पकड़ी कि क्रेडिट नोट का जो ये नोटिफिकेशन जो आप हमें दिखा रहे हो रिसाइंड हो चुका है। अच्छा, हमारी मुनी में नहीं था वो रिसाइंड हो चुका है और उसके बाद कमेंटेड भी हो चुका है। हमने उसको पढ़ा, सब चीजें करी, पर उसके बाद में जब उसने नए नोटिफिकेशन उसको दिखाए कि भाई ये रिसाइड हो चुका है, आप इसको पर्टिकुलरली हमारे ऊपर अप्लाई क्यों कर रहे हो, तो तब जाके वो माना कि हाँ ये रिसाइड हो चुका है और ये वाला नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट आया है वो एप्लीकेबल हो चुका है। पर ये चीजें चेक जीपीटी में हमें मालूम हो सकती है नहीं सकती पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में। सर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, जैसे क्रेडिट नोट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, यदि आप क्रेडिट नोट के बारे में डालें कि एनी क्रेडिट नोट जो नोटिफिकेशंस हैं वो कितने नोटिफिकेशंस आए और कितने रिसाइड हो चुके हैं। तो वही चीज बोल रहा हूँ, GTA के ऊपर मेरे ख्याल से 4-5 नोटिफिकेशन आ चुकी है। हाँ आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम 12/2017 में भी आपका GTA के ऊपर था। बिल्कुल सर आप पूछ रहे हो, हेल्प डेस्क है ये तो बहुत बड़ा हेल्प डेस्क है। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप कितना उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हो। बिल्कुल सर, एक लेटेस्ट मतलब जो भी आपके लेटेस्ट जो इस समय अरे देखो सर, इसमें क्या है कि सीएम के इशू दिखा रहा है उन्हें, बट बोल रहा है कि बताओ बात है कौन बेटर और वर्स, जो मैं आपको बता रहा था वो नोटिफिकेशन तो देख लेते हैं कि जैसे अगर आप उसको बोलोगे कि आंसर मेरा बेटर नहीं था या वर्स था, इसको फील हो गया, तो किसी और ने पूछा तो बता देंगे यार आंसर सही नहीं दिया था मैंने, तो मुझे आंसर नहीं दिया, मतलब रेटिंग हो गई है हैं? हाँ रेटिंग होगी सर, आपकी फीडबैक के ऊपर और इंप्रूव कर रहा है वो। पीछे तो बंदे बैठे हुए इनके भी, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो चलते थे एक साथ। वो टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव होती ही रहती है, फेल मैनर में चली गई। देखिए वर्क करने के बाद एक क्वेश्चन दोबारा पूछो तो आंसर दोबारा यही करेगा या फिर कहेगा ये नहीं सर, दोबारा से नहीं करेगा, तो करेंगे हम उसको। आप रीजनरेट भी कर सकते हो, एक बार दोबारा नहीं जनरेट कर सकते हैं, तो फिर डिफरेंट आंसर आएगा। डिफरेंट आंसर। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम लोग भी जब कोई हमसे पूछता है तो हम चांसेस रहते हैं कि उसको दोबारा आंसर सेम ना दें, थोड़ा बहुत फीड कर दें, ताकि ये भी कर सकते। तो कितने परसेंट बिलीव करें इसके ऊपर? सर उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों को बुलाना पड़ेगा। सर मैं कह रहा हूँ अभी आप 6 महीने वेट करिए, ये आपको रिस्पॉन्स की रिप्लाई के साथ साथ अपने निकाल के दे देगा और उस पर ज़्यादा बेटर कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर जितना डाटा पड़ा था हम लोगों को तो माइंड है कितना ढूंढ लेंगे सर हम। सर अब इसकी हेल्प से अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया और वो गलत हो गया तो भी नुकसान तो इसका है। वो तो आप वैसे भी तो आप सर वैसे भी गूगल सर्च करते हो, पढ़ना तब भी पड़ेगा। वैसे भी तो गूगल सर्च करते आपको हो, अपडेटेड रहना पड़ेगा हर चीज के अंदर। सेल्फ अपडेशन अब आजकल कितने नोटिस जा रहे हैं, देख नहीं रहे? सेम आंसर 17-18 से रिलेटेड आ रहे बताइए नोटिस। चैट जीपीटी 18-19 भी आ गए सर, चैट जीपीटी पे तो केस करने थे रे। अच्छा सर आगे अपने प्रश्न देखो कि जैसे भी टाइम मैनेजमेंट हमने ब्राउज़र बिंग का देखा, एडवांस डाटा एनालिसिस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाली आई कि मैंने डाटा भी फीड कर दिया, मेंटेनेंस भी चला गया, वहां भी देख लिया, अगर कुछ मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है तो कोई पीडीएफ पड़ा हुआ है तो उसका डुप्लीकेट नहीं होगा। मानो कम्युनिटी वेबसाइट पे तो है, वहां पे भी है, और वो अभी नोटिफिकेशन है एग्जांपल के लिए आईसीआई की, ताकि नोटिफिकेशन दिखा देता हूं मैं। ये नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन कैसे होगी यहाँ पे तो आगे सर नेक्स्ट लेवल, अब तो कोई सिस्टम में ओपीआई यूज होता है, बट फिर अगर फ्रेंड रहिए किसी क्लाइंट डाटा में अपलोड करिए तो ये सब डाटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है।
चलो मैं ये करता हूँ पॉइंट नोटिफिकेशन। देखो सर कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं इसमें। वे होते हैं कि नहीं पढ़ने की? मुझे कुछ और सब दिमाग में आ रहा है। हमें 10th 11th क्लास के अंदर वो एक बड़े बड़े पैराग्राफ दे के कहा जाता था कि एक समरी बना के दो। मतलब ये क्या समरी बना देगा। मेरे दिमाग में वो चीज एकदम से क्लिक हुई। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि आने जनरेशन से क्या होगा, वो पढ़ेंगे इंसान कोई ना कोई पढ़ेगा ही नहीं। वही बोल रहा था मैं भी वही बोल रहा था। वो समरी पढ़ेंगे, समरी आ जाएगी, वही पढ़ा देंगे, वही तो बता देंगे क्यों क्या है उनको। कोई कैसे इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, साथ लगा देंगे, फिर बोल देगा वो तो आया हुआ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। आप बस स्पीकिंग भी बोलते हो। कुकू एफएम इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल। हां वो भी देते हैं समरी है, वो देते हैं। बुक है पूरी, बुक सुनाते, बुक सुनाएगी पूरी। अच्छा सर ये तो हो गया, भी सुनाता है। ये तो हो गया, आई होप वर्क करे, कभी वर्क नहीं करता। मैंने ये बना दिया, सब कर दिया। अब कुछ ऐसा तो सकता है कि मेरी पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट बना भी दे। टेक्स्ट फाइल आती है ना सर। सर सीवी अभी बनाया था, वो वर्ड डॉक्यूमेंट तो था। नहीं मैं तो इसमें लिख के दिया था, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या वो मेरे काम नहीं होता। आप वहाँ पे कमांड इस टाइप से लिखोगे कि गिव मी अ वर्ड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग। नहीं सर, मतलब पहले नहीं था, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, ये सब आपको जनरेट करके देता है, ये सब जनरेट करके देता है जो आपका इसमें खुद ही टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, ये इस फीचर के साथ ही होगा। बहुत सही हो जाए। हाँ उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो, 2 लाइन अच्छी से बोल लो, जरा तो ठीक रहता है। मतलब इससे हम एक टाइप के नोटिस के रिप्लाई देख सकते हैं। मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ, प्लीज रिफ्रेन। नहीं डाटा अपलोडिंग नहीं होगी वहाँ पे। वहाँ पे सिंपली लिखा जनरल लाइक तो कर सकते हैं इसमें। हाँ जी जनरल लाइक तो कर सकते हैं। सर करने को तो नोटिस भी कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्रेन करिएगा। अब देखिए इसने नहीं दिया डाउनलोड कर कीजिए। वर्ड की बात करें नहीं सर, जैसे चैट जीपीटी आपका एक टूल है। वर्ड है ये हाँ बात हम चाहे तो देख सकते हैं हम। लेकिन इधर से भी कहते हैं तो दिस इज द स्टार्ट। अभी कैसे इतने मॉडल्स आएंगे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, कितने नए वर्जन आएंगे, जस्ट थिंक। फटाफट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाढ़ क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता कि जैसे बाढ़ है वो हमारी गूगल वर्क पे रीजन पे अटैच है, तो अभी लेकिन काम कर रहा है कल
जिसमें लाके दे रहा है, तो आपकी कौन सी मेल किस टाइम पे गई है, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे कौन से हैं, आप वहाँ पे जाके भी सर्च मार सकते हैं बाद में। तो मेरी ईमेल सर्च करो कि ये मैंने ईमेल इसको कहाँ भेजी। उस तरह की इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो गई है। जब एक प्लेटफॉर्म यूज करोगे गूगल का, बात करोगे तो गूगल और भी जो उसके टूल्स हैं तो सब चीज़ें आपकी इंटीग्रेट साथ में मिलती हैं। जैसे हमने उसमें देखा, वैसे ही हम क्लाउड पर भी इससे भी अटैच करके डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के बारे में पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी समरी बनवा सकते हैं। अरे पर नेट पे ऐसे क्यों कर रहा है? मैं बड़ा बड़ा कि अपनी नेट पर रखूं। सर भी टाइम पर करने वाला है सीएस की काम के ऊपर, जो सिंपल अकाउंटिंग वर्क है सर, कहने की मशीन लर्निंग जो है उसको जरूर बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेगी। अगर आपने किसी ने कोई यूज करता है तो उसमें आपने फीचर देखा होगा आ गया कि इनवॉइस आप उसमें अपलोड करो, उसकी अकाउंटिंग भी अपने आप कर देगा, और वो फीचर बहुत महंगा है पर वो उतनी ढंग से काम नहीं कर रहा है। पर धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड जब आपकी सारी इनवॉइसेज आपकी जीएसटी पोर्टल से निकलेंगी, आपकी इनवॉइसिंग हो जाएगी, तो ये टाइम दूर नहीं है, तो सब पता है कि कहाँ से डेट खानी है, कहाँ से अकाउंटिंग करनी है, तब आपकी ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। इनवॉइस प्रोसेसिंग मैं आपको बता रहा था। टैक्स प्रिपरेशन एंड कंप्लायंसेस, जो अभी टैक्सेशन में हम देख रहे थे, जितना हमें टाइम लगता है, जितनी हमें मुझे लगती थी राष्ट्रीय के लिए हमारा जो टाइम है रिड्यूस होने वाला है। हमें सिर्फ ये कहना है कि ये थोड़ी सी हमारे हिसाब से चीज सही है, उसको अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जो पहले कन्वेंशन से टैक्स के प्रैक्टिस के वो काफी चेंज हुए हैं उस लेवल से। सर फ्रॉड वगैरह जैसे आप इनको बता रहे हो, हमारे पास एक लिमिटेड डाटा है, हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज है। धीरे धीरे ऐसे टूल्स आ जाएंगे जो आपकी इन डाटा को बेटर एनालाइज कर पाएंगे, टाइमली एनालाइज कर पाएंगे, देखेंगे कि क्या फ्रॉड की ट्रांजैक्शन पहले की डे पे अगर अकर हो रही है तो इन आपको टर्न स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। दिस काइंड ऑफ थिंग अभी हमारे प्रोफेशन में चेंजेस आ रहे हैं और आने वाले हैं। सर आगे जो टाइम आने वाला है वो आप लोगों के लिए आने वाला है कि यार कौन सा टूल यूज करना है। मार्केट में ये चीज नहीं जाएगी कि अकाउंटिंग करा दो, यदि बताओ कौन सा टूल भेजिए बढ़िया, क्योंकि बीइंग फाइनेंस एक्सपर्ट आपको पता होगा क्या ये टूल यहाँ बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बोल रहा हूँ कि चैटजीपीटी इस चीज के लिए बढ़िया है, गूगल का बार यहाँ पे बढ़िया है, तो हमारा रोल थोड़ा सा एडवाइजरी टाइप में जाता जाएगा, तो उसकी अकाउंटिंग उसके लिए काफी चेंज हो जाएगा। एंड यू कैन सी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज के टाइम में चेंज नहीं हुआ तो जो फ्यूचर में लोगों जो आज के डेट में भी हम उसके पास पर्सनल एम्प्लॉय करते हैं, जो भी करते हैं, उनके पास उनको चैटजीपीटी की नॉलेज कितनी है, जितनी उसकी नॉलेज है, ये काफी चेंज होने वाली है। क्योंकि आप उसी पर्सन को रखोगे या पर्सन में रखेंगे जिसको उसकी नॉलेज है, उसको मैं बाहर सिखाऊंगा नहीं बैठ के। पहले तो अकाउंटिंग नहीं सिखाते थे, अब उसको आप ये टूल यूज करना नहीं सिखाओगे। इस तरह से डायमेंशन जो है हमारे सीएस के चेंज होने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर का स्टाफ जो चेंज होगा, पहले तो मिलते थे कि यार सर टेक्स्ट में कौन सी नोटिफिकेशन आ गई, पता ये भी ध्यान में है एआई में नहीं चीज आ गई, पता लगे तो मैं कर रहा हूँ तो 2 महीने का काम था, कोई नया पर्सन आगे ऐसे कर देगा। तो आई थिंक इंस्टीट्यूट भी हमारे स्टेज पर काम कर रहा है, एंड देन एआई भी एक
तो हमारे एआई में इतनी सारी ऐसी फैसिलिटी हमारे प्रैक्टिस कोर्स सबका एक ग्रुप पार्ट बनने वाला है। तो एआई के टूल्स मार्केट में यूज हो रहे हैं, अभी टूल्स मार्केट में ही है, इतने बेटर जैसे मैं बता रहा हूँ कौन सा टूल कैसे यूज कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आगे के मार्केट में बनने वाली, ना कि आप अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, ये चीज कैसे कर रहे हो, रिप्लाई कैसे बना रहे हो, रिप्लाई कौन बेटर बना रहा है वो बेटर आपको बदलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि एआई कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करती है सर, ये ट्रांसफॉर्म करती है। ये तो फैक्ट है कि हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, हम नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्म कैसे करवाएंगे। फर्दर चैलेंजेस टेक्नोलॉजी में आता है स्प्रेड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन। सर आज के टाइम पे हमने देखा हो तो गूगल अपना यूट्यूब वगैरह पे भी आप जो मिसइंफॉर्मेशन फैलाना चाहते हो वो आप आज के डेट में फैला सकते हो। सेकंड चीज की ये तो अभी एआई के ऊपर कोई लॉस अभी आने शुरू हुए हैं, अदरवाइज जिन लोगों के पास लॉस एग्जिस्ट नहीं करते, चाइना जैसे बाकी लोग जैसे बाहर कंट्रीज हैं, अब तो ये सब ओपन है, सब खुल चुका है, तो वो चीज़ को कैसे यूज करेंगे आप उनको नहीं रोक सकते हो इस चीज़ को यूज कर रहे हैं। ये चैलेंजेस आगे वाले ऑब्वियसली जो ऑटोमेशन की जो चीज़ें हो सकती हैं वो जॉब जाने वाली हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, बाकी ऐसी जॉब्स जो मार्केटिंग की होंगी की वो जॉब जाएंगी, या जॉब्स जो है मार्केट से जाने वाली। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च जॉब्स मार्केट में कम नहीं होंगी लेकिन चेंज जरूर हो जाएंगी। आज के टाइम में कंटेंट राइटर, स्टोरी राइटर, सब कुछ भी स्टोरी बनो, उन लोगों को बेटर बना, कंटेंट बेटर बना देगा, आपको चीजें नहीं बेटर कर देगा, उन लोगों की जॉब वाकई में एटलीस्ट एक जरूर रहेंगी। अभी सर थोड़ा टाइम पहले इन लोगों ने एक पटिशन साइन की थी कि इस एआई के ऊपर इतनी तेजी से डेवलपमेंट जा रही है कि रिकाउंट की कहाँ तक जाएगी। जिन लोगों ने बनाया है मेरे से पूछता है कहाँ तक जाएगी, तो उनको बहुत स्टूडेंट है अभी इस फील्ड पे, जो लोगों ने बनाया उन्हें आइडिया नहीं कहाँ तक जाएगी। तो का पीछे साइनिंग ऑफ पटिशन आया था कि इसको जनरली होल्ड करते हैं, बट क्या एलोन मस्क तो बाकी 5 लोग इसको होल्ड कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाकी लोग तो नहीं करेंगे। जिनों के पास टेक्नोलॉजी आ गई वो तो नहीं करेंगे। आज के टाइम से आपको भी फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई चाइना डेवलप कर रहा है, ऐसे कोई इंडियन डेवलप कर रहा है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, आपको भी उनसे एट पार रहने के लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। सिमिलरली बिजनेस, सिमिलरली प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है उसको, तो आपके पास चॉइस नहीं मिलेगी, यू हैव टू यूज दैट। जैसे मैं बता रहा हूँ देयर लॉस, जैसे मेरे उसमें जैसे आज के टाइम पे डॉट है, आज के टाइम पे सेबी है, जो रेगुलेशन जो इंक्रीज को कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे एएस के ऊपर भी लॉस रेगुलेटरी बॉडी बनने की रहेगी। आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका बैंकर आता नहीं आता होगा तो लाइक्विडिटी पूछ लोगे उससे, अगर आपके पास एनडीए साइन नहीं है एक तरीके से अप्लाई सकते हो, तो एथिकल पार्ट आ गया ना, तो देख रहे हो आप देयर विल बी सम लॉस जो इसके अंदर आएंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये कैसे यूज करना है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, कितने लीगली यूज करना है, तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट यूज होना चाहिए। आई थिंक रिटर्न ड्यूटी बनाई थी तो ये नहीं था, चाइना में इसके ऊपर पर्टिकुलर डिटेल डॉक्यूमेंट एक आ चुका है कि एआई में क्या क्या फीचर हो सकते हैं, क्या क्या फीचर नहीं हो सकते। इट कैन बी सो डेंजरस। जैसे मैं आपको चैलेंज दिखाया था, आई थिंक ऊपर की पिक्चर आप देख रहे हो कुछ अगर प्रेडिक्ट कर पाओ, वो टाइम पहले जो ये प्रोटेस्ट हुआ था और ये प्रोपेगेंडा कार्य क्या था कि वो लोग तो खुश हैं वहाँ पे, जो मैनिफेस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर इस तरह के एक ही चीजें आएंगी तो मेरा आप तो समझ पाएंगे कि क्या गलत है, तो प्रोपेगेंडा करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपकी एक माइंडसेट को बनाना, आपकी एक थिंकिंग को बनाना। आज के डेट में बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब वगैरह इतने एडवांस लेवल पे नहीं है तब भी हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं, हमारा माइंड ऐसे ही उन्हें हैक कर लिया। तो सर ये क्या करेगा? तो एट द एंड सर चेंज टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होगा, अदरवाइज ऑब्वियसली चेंज हो करेगी तो बहुत पेन होगा, एंड कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कोई हमारे पास। दिस इज माय ओनली मिशन कि अपने सीए भैया के साथ जहाँ मैं जितनी नॉलेज शेयर करता हूँ, ये के ऊपर मैं एज स्टूडेंट हूँ, हम सब की तरह थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया बस स्टूडेंट नहीं,
जहाँ जहाँ पे मेरी कोई ऐसी आप लोगों को लगता है कि कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी। मेरा ये है कि बीइंग ए फाइनेंस पर्सन हम सिर्फ टैक्स की चीज़ों में या बाकी सब चीज़ों में ट्रेडिशनल चीज़ों में इतने मुलझ हैं कि कहीं एआई हमसे आगे नहीं होता। विद दैट आई जस्ट थैंक यू वेरी फॉर योर पेशेंस विद मी। I think you can say मेनली तो क्या दोस्त पे ड्राफ्टिंग हो जाती है और कुछ बीवी की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वही चल मैंने चैट के लिए फर्स्ट टाइम जब यूज किया ना, मैंने न्यूज़ लेटर के लिए स्टार्ट किया था। न्यूज़ लेटर में मैसेज लिखने के लिए, तो मैं पहली बार लिखा उसको, जो चीज चाहिए मैं उसको दे ही रहा था, जो आउटपुट अच्छे से निकाल के दे दे। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया ये सही नहीं बैठ रहा। मैं उसमें लिख रहा चेयरमैन मैसेज, उसको पता ही नहीं कौन चेयरमैन, क्या चेयरमैन, उसको भी सारा समझाया कि चेयरमैन मैसेज रोहतक ब्रांच एनआईएसएफ आईसीआई, ये एडिशन है, इस महीने हम ये करने वाले हैं, इसके अंदर ये इंक्लूड करते कि हम ये करने वाले हैं, ये किया है। वो जो ड्राफ्ट करके देता है ना, लिटरली 1 मिनट लगती है, मतलब आर्टिकल को। फिर उसके बाद अगर आप उसको एडिट चिपका दो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ चीजें आपको देनी पड़ेगी कि भाई इसमें ये करेक्शन करनी पड़ेगी। वो एक आप यूज कर सकते हो हेल्पिंग हैंड के लिए, पर उसको फुल टाइम कभी कल मैं करनाल रीजनल कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें अटेंड कर रहा था, तो जीएसटी स्पीकर थे आंसर को बोलना, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक ने हाई कोर्ट में रिप्लाई सबमिट किया, केस लॉज उठाए, चैट के लिए लिखा हुआ रिप्लाई था, उसमें जो केस लॉज थे काफी गलत थे। क्यों? उसने उस पे केस लॉ दिए पर उससे टॉपिक से रिलेट ही नहीं करते। तो मतलब हमें उस टॉपिक से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके भी वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट है कि उसको पढ़े ना, आप उसे चिपका दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको भी यूज करने के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन है, पर हेल्प बहुत ज्यादा मिलती है। So thank you Ramesh sir for sharing valuable knowledge with us, and now I request Sajan Ansari to present a momentum to Ramesh sir. कई बार इतने बड़ी आंसर बता देता है कि आपको उसको रोकना भी पड़ता है। मेरा स्टाफ कई बार चैट जीपीटी से मेल बनाता है तो उसको लगता है यार ये मेल तुम्हारे पास की नहीं है, ये चैट जीपीटी से कॉपी करी गई है। तो प्लीज़ अपनी मतलब ये अकल भी लगाएं उसको यूज़ करते हुए, बिल्कुल ही उसको चेप नहीं देना चाहिए। हमारी वैल्यू जब भी तो बनी रहेगी ना। एब्सोल्युटली सर, तभी बोल रहा हूँ कि जितना हम इंटेलिजेंटली उससे पूछ पाएंगे। फर्स्ट टाइम मैंने चेयरमैन मैसेज उससे लिखने की कोशिश की तो 3 पेज ChatGPT में एडवांस एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल में क्या-क्या चीजें हम ChatGPT के थ्रू या वैसे एडवांस एक्सेल यू कैन वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर सी दीपक गुप्ता। Full to Gaurav ji, Rohtak branch of NIST of IT for giving me the host. जैसा कि टॉपिक्स AI और एडवांस एक्सेल पे है, AI के बारे में अभी कल ने काफी कुछ बताया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि AI के ऊपर जो जो चीजें सब बता रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल पॉसिबल है, एंड जितनी जल्दी हम चाहते हैं ऑडियंस AI के ऊपर और AI को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दें
हमारे डे टू डे लाइफ वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाए। एक्सेल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई आपको करके दे सकता है। आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क जो आपको लगता है कि भैया इसको करने में मुझे 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, रिकंसिलिएशन है, कुछ रिपीटेटिव टास्क है, वो सारी चीज भी आप चैटजीपीटी और एआई टूल्स के हिसाब से कर सकते हो। मैक्रो इज द वन थिंग व्हिच हमें लगता है कि हम नहीं बना सकते हैं बिकॉज भी आप ओवर टेक्निकल पर्सन या तो प्रोफेशनल्स हमें ये नहीं पता हाउ टू राइट द मैक्रोस। इनकम टैक्स ड्यूटी हम सब ने देखी हुई है, सारे चार्ट अकाउंटेंट्स ने यूज करी हुई है। वो इनकम टैक्स ड्यूटी जो गवर्नमेंट बनाती है वो मैक्रो पे बनी हुई है, बट उनके पास टेक्निकल पर्सन है, हमारे पास वो टेक्निकलिटीज नहीं है। हमने तो पढ़ाई करी है, वो फाइनेंस की पढ़ाई करी है, हमने टेक्निकल पढ़ाई नहीं करी, हमने नहीं पढ़ा कि मैक्रो कैसे लिखते हैं। बट अब आपको उसकी जरूरत नहीं है कि मैक्रो कैसे लिखते हैं, आपको बस इतना बताना है कि मुझे किस चीज का मैक्रो चाहिए, उसको कैसे लिखना है, उसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। जैसे सर ने बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा उसकी जॉब आने वाली है, बिकॉज एआई टूल से आपको कैसे बात करनी है, उससे कैसे चीजें निकलवानी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक भी सेंटेंस इधर से उधर हो जाता है तो उसका पूरा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। जो ह्यूमन बीइंग आप और मैं बात कर रहे हैं कि हमारा सेंटेंस थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन एआई नहीं समझते। एआई को लगता है कि जो उसमें बोला गया है वही उसको उसका रिप्लाई देना है। सो उसके लिए बहुत जरूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको लिखना कैसे है। सेम इज कि एक्सेल के अगर आपको कोडिंग चाहिए, एक्सेल के अगर आपको मैक्रोस चाहिए, तो वो मैक्रोस भी आपको बहुत डिटेल में लिखने पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे किस कॉलम में क्या चीज है, किस कॉलम में क्या चीज नहीं चाहिए, वो सारी चीज आपको उसको बतानी पड़ेगी, तभी वो आपके लिए इंटीग्रेट कर पाए। मेरा टुडेज का सेशन मेनली ऑन एक्सेल मैक्रोस है कि हम मैक्रोस कैसे जनरेट कर सकते हैं, मैक्रोस कैसे बना सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा टास्क है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इश्यूज क्या है आपके डे टू डे लाइफ में। एक ऐसी टास्क जो आप रिपीटेड बेसिस पे कर रहे हो, जिसको करने में हाफ एन आवर 1 आवर 2 आवर टाइम लगता है, वो आप 2 मिनट में कर सकते हो। प्रोवाइडेड एक बार मैक्रो बनाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको हाफ एन आवर 1 आवर माइट बी टू स्पेंड। उसके बाद आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली आपकी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। एनी काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जीएसटी 283 के रिकंसिलिएशन के, वो रिकंसिलिएशन भी आप विदाउट सॉफ्टवेयर अपना खुद का बना सकते हो कि हमें क्या रिकंसिलिएशन चाहिए। रिकंसिलिएशन हमें सिर्फ इतना चाहिए कि क्लाइंट की इनवॉइसेस है और हमारी इनवॉइसेस तो आपस में मैच हो जाए। मैच होने के लिए हमें इनवॉइस नंबर चाहिए, इनवॉइस नंबर्स में इधर उधर कॉमा वगैरह बहुत सारी चीजें पे डिफरेंस आ जाते हैं जो क्लाइंट लगाता है, वो रिकंसिलिएशन भी आप कर सकते हो। So all this is possible with the help of the AI. Now AI will not replace you, AI a person using AI, जो कि एलन मस्क ने बात बोली थी कि AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा, but a person using AI will definitely replace you. आपने सर का सेशन सुना, आफ्टर इन माय सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो काम हम पूरे दिन में करते हैं वो काम ये AI सिर्फ कुछ घंटों में कुछ मिनट में करते हैं। एंड एक चीज और बोलूंगा बिफोर स्टार्टिंग कि एआई को अपना प्रिंसिपल मत बनाइए, एआई को अपने साथ मत बनाए रखिए, एआई को अपना आर्टिकल बना के रखिए। जो भी चीज एआई करके दे रहा है उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे नोटिस का रिप्लाई हो, चाहे ईमेल का रिप्लाई हो, एवरीथिंग। This is a free of cost article which has been provided to all of us and that is also free of cost. ठीक है, जो सर्वे की बनाई है 2 वर्जन्स है, एक फ्री है एक पेड है। ठीक है, फ्री वर्जन्स में भी हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं विदाउट अपलोडिंग मेनी थिंग्स। आप ईमेल का रिप्लाई के लिए यूज कर सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो, आप नोटिस का रिप्लाई के लिए कर सकते हो, आप एक्सेल के मैक्रोस के लिए बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। पैसा आपको देना है किसी चीज को आपको अपलोड करना है, डेटा एनालिसिस करना है, सीवी डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें आपको पैसा देना है। तो आई नो दैट वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं until and unless हमें लगे कि आप ये बहुत है, because $20 in a month बहुत ज्यादा है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हो इट्स फाइन, आपने कब कह रहे हैं कि एआई में ले गए हो, एआई से आप बहुत यूज कर रहे हो, यू पे फॉर इट, बट अदरवाइज मैक्सिमम चीजें आपकी फ्री वाले से चल रही है, आपको कभी पे नहीं करना। हो सकता है यूजर में वो उसको पे के कर रहे हैं, आप ये फ्री वाले में वो पे कर रहे हैं, फ्री वाले के यूजर को सर्विस कर रहे हैं, बट
right now वो सब चीजें खुद फ्री है हमारे लिए। So AI will not replace, but जो persons use करेंगे AI, मतलब हमारे clients ने use करना start कर दिया, या फिर हमारे fellow chartered accountants ने use करना start कर दिया। एक chartered accountant अगर आपका notice से reply आ रहा है, let's suppose imagine करो कि जो audit का time होता है 9 की registrations होगी। Imagine the situation हमारे पास software ही नहीं है, जो कि हम बहुत सारे softwares use कर रहे हैं different companies के, चाहे वो Texan का हो, Clinismate का हो, Computex का हो। Without software, imagine कि आपका registration में कितने दिक्कतें आने वाली हैं। Imagine मैं सुना कि Texan को बहुत रेट बढ़ा दिए अपने software के registration के लिए। आपको हर साल हम तो पे नहीं करेंगे क्योंकि हर साल हमारी फीस होगी बढ़ती है, इतना टैक्स उसका रेट बढ़ाया जा रहा है। तो आपके पास फ्री में टैक्स अवेलेबल है और एक पर्सन जो फ्री में यूज कर रहा है और एक पर्सन जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है, देयर विल लॉट ऑफ डिफरेंस। एक पर्सन जो उसको बहुत जल्दी कर लेता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक अकाउंटेंट है या कंपनी में काम कर रहा है, कोई भी मैं भी क्यों ना हो, अगर सेम काम हम दो बंदों को दे रहे हो, एक बंदा उस काम को हाफ एन आवर कंप्लीट कर रहा है और एक बंदा उसको एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इशू और लॉट ऑफ चीजें क्वेश्चन उठते हैं कि भैया वो कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सबने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। चैट जीपीटी एक दूसरा, ठीक है, बेनिफिट्स भी आपने ले लिया है। चैट जीपीटी की साइट को यूज कैसे करना है, यू नीड टू गो टू द चैट जीपीटी वेबसाइट, चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए चैट जीपीटी एंड आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग यूज कर रहे होंगे चैट जीपीटी, या हाउ मेनी ऑफ यू यूजिंग, मतलब किसने चैट जीपीटी में कुछ अकाउंट बना रखा है नहीं बना रखा है? ओनली 4-5 पीपल। सर प्लीज मी स्टार्ट कर दीजिए यूज करना, आपको बहुत सारी चीजों में काम आएगा। आपको पीपीटी बनानी है, एक्सेल की कोडिंग करनी है, न्यूज़ लेटर्स बनाने हैं, अपनी फर्म के वेबसाइट पर कुछ आर्टिकल्स डालने हैं, बट सेम कॉपी पेस्ट मत करना, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। कोडिंग जो देता है वो हमेशा सही नहीं होती है, उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। जो मैक्रो में करूंगा ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में जो मैक्रो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, समटाइम्स आ जाता है समटाइम्स नहीं आता है। उस केस में आपको रीटाइप करना पड़ेगा, आपको अपना प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि चैटिंग भी है, वो सब काफी कर दिया है। बेनिफिट्स आप सबको पता ही है, एफिशिएंसी इंप्रूव है, क्रिएटिविटी है, आपका टाइम बचता है, दोनों चीज आती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम चैटिंग से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या मैक्रो यूज कर सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मैक्रो यूज करूंगा वो मैक्रो यूज करूंगा जो हम मेल्स करते हैं क्लाइंट्स को। हम क्लाइंट्स को जो मेल करते हैं R1, PDP, PDS, GST इन सब जो मेल करते हैं, एक महीने में कितने मेल कर देते हैं क्लाइंट्स को? कोई गैस आप बताना चाहेंगे? कम से कम 5 से 7 डेटा मांगते होंगे महीने में क्लाइंट से, अगर जीएसटी का काम कर रहे हो तो। और जीएसटी में भी आपको पता है कि टीसीएस लग गया है, तो पहले आप टीसीएस का डेटा 7 तारीख से पहले करना है, फिर 11 तारीख को आपको आरओ का डेटा मांगना है, फिर 3D का डेटा मांगना है, फिर खुदाना खास्ता एनुअल रिटर्न आ गई, पीडीएस का रिटर्न आ गई और कुछ आ गया, सब आ गए। तो 2 प्रैक्टिसेस से डेटा मांग रहे हैं, या तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं या हम ईमेल कर रहे हैं। फोन करने का आपको टाइम नहीं है कि आप एक क्लाइंट को फोन करो। इमेजिन 20-30 क्लाइंट है, 50 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है। अब 100 क्लाइंट को आपको डेटा मांगना तो कैसे मांग लो? प्लीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, हाउ यू आर आस्किंग डेटा फ्रॉम योर क्लाइंट्स? मेल से व्हाट्सएप मेल आप कितनी बार कर रहे हो? मेल ग्रुप बना के उसके अंदर डाल के एक बार रिमाइंडर भेज देते दोबारा उसको सही। तो आपको बार-बार हर क्लाइंट को अलग-अलग मेल लिखना पड़ता है या फिर बस खाली बात नहीं? बट आप उसमें उसको क्लाइंट का नाम नहीं मेंशन कर पाते होंगे, या फिर मेल मर्ज से भेज रहे हो? मेल मर्ज हाउ मेनी यू आर यूजिंग मेल मर्ज? ओनली 1, 2। ठीक है, आप सीधा क्लाइंट को क्या कर रहे हो कि डियर सर या डियर मैडम, या आपने डियर सर / मैडम लिख के डाल दिया और वही एक मेल आपने सारे क्लाइंट्स को बीसीसी में डाल दिया, उसको मेल भेज दिया। ठीक है, बट दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस, वो आपको पता है, बट हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। बेटर ये है कि अगर उसका नाम लिख के चला जाए, ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा कि डियर जो भी क्लाइंट का नाम है, सर मैडम व्हाटएवर, और एक बटन पे चला जाए, ना तो आपको नीमा यूज करना पड़े ना और कुछ। मेरी वहाँ पीछे तक आगे मैं यूज करना चाहूँगा। तो अगर आपको
मेल मत की जगह एक बटन दबाए क्लाइंट का डेटा मिल जाए, तो वो ऑप्शन बेटर है या फिर जो BCC में मेल भेज रहे हैं वो बेटर है? तो बेटर जिसकी शक्ल अच्छी है उसको कल को क्लाइंट क्या अटेंशन, आप एक बंदे को प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो, नाम लिख रहे हो, तो वो तो अच्छा होगा ही नहीं। बट आपका तो कुछ जा नहीं रहा ना सर, देखो आपकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है कि आप ओबीएसली जो क्लाइंट है वो सीधी सी बात है, जो पैसा ज्यादा देगा उसको हम ज्यादा टेंशन देंगे, ठीक है, और जो पैसा सही से नहीं देगा उस पर टेंशन कम हो जाएगी, ये तो फैक्ट है, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि भैया क्लाइंट से जो अभी हम चाहते हैं वो एक बार में एक इंटरेक्शन में चला जाए, उसको हमें बार बार उसको मेल ना लिखनी पड़े, बार बार उसको एंटरटेन ना करना पड़े। क्या तो जो बड़े ऑफिस हैं उन्होंने एक लड़के को बैठा रखा है, वो पूरे टाइम मेल ही करता रहता है, ठीक है, और या फिर पेमेंट रिमाइंडर्स भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी भेजता ही नहीं है, जब अगले साल का ऑडिट कराने आता है तब हम पिछले साल की पेमेंट मांगते हैं, या फिर वो खुद ही शर्मिंदा हो गए बोलता है अच्छा सर पिछले साल की तो आपकी पेमेंट रह गई, मैं भी करा देता हूँ, तो उसको पता है कि अभी उसका काम फंसा हुआ है, अदरवाइज वो क्या हमारी पेमेंट करने की जहमत नहीं उठाता है कि हाँ मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो इशू है क्लाइंट का। जब तक क्या पुरानी प्रैक्टिस चल रही है तो पुराना ही ऐसा चला हुआ आ रहा है कि अब हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे, चेंज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सर ये मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, इस एक्सेल शीट में मैंने नेम ऑफ द क्लाइंट डाल दी, यहाँ पे सैंपल बेसिस पे आपको की दिख रहे हैं, यहाँ पे 50-100 जितने भी अपने क्लाइंट हैं उसका नाम डाल दो, यहाँ पे हर क्लाइंट की ईमेल आईडी आ गई, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है, आपका बॉस आप खुद ही है मैक्सिमम केसेस में, तो आप अपने स्टाफ को भैया ये ईमेल आईडी मुझे दी है, मेरे को सीसी करना जरूर है मेल में, आप नहीं चाहते सीसी ना करें कोई बात नहीं, आपकी ऑफिस की कोई और ईमेल आईडी हो वो सीसी करा लीजिए। कौन से मंथ का आपने डेटा मांगना है, नवंबर दिसंबर व्हाटएवर मंथ आपने डेटा मांगना है वो डेटा आप चूज कर लीजिए। किस रिटर्न का डेटा मांगेगा, टीडीएस का, जीएसटी का, आईटीआर का, बीपी का, रिकंसिलिएशन, जो भी डेटा आप मांग रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। किस डेट तक आपको डेटा चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और एज पर गवर्नमेंट लास्ट डेट क्या है उसको फाइल करने की वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि वो दिस इज द लास्ट डेट टू प्रोवाइड द डेटा, ये गवर्नमेंट की तरफ से डेट है। अगर मेरे पास डेटा इस डेट तक नहीं आया तो आप जो भी करना चाहते हैं कि भाई पेनल्टी लगेगी, यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, हम फाइल नहीं करेंगे, जो भी आपको करना है। देखो मेल ड्राफ्टिंग आपके ऊपर है, आप उसको कितना स्ट्रांगली ड्राफ्ट करना चाहते हैं, जैसा भी ड्राफ्ट करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। ये एक सैंपल है, इसमें आप और भी चीजें ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। अब ये मेरा डेटा आ गया, मैंने इसमें नवंबर की जगह दिसंबर आएगा, मैं मंथ, ये 4 चीज मुझे चेंज करनी है बस, मंथ, रिटर्न टाइप एंड बोथ द डेट। उसके बाद ये एक शीट है, आप इसकी 5 शीट मल्टीपल शीट्स भी बना सकते हैं। ये टीडीएस की शीट है, जीएसटी, बिकॉज कई केसेस में ऐसा होता है कि जो क्लाइंट टीडीएस का काम कर रहा है उससे आपसे जीएसटी का नहीं करा रहा है, जो जीएसटी का करा रहा है टीडीएस का नहीं करा रहा है, कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में आप 2 अलग अलग डेटा बना सकते हो कि भैया मेरे को सेलेक्ट ही नहीं करना है कि टीडीएस का कौन सा है, जीएसटी का कौन सा है, एक ही डेटा आया, बटन दबाया, मेल चलेगी। अब इस बटन को दबाओगे आपके आउटपुट से मेल चली जाएगी, क्लाइंट के नाम के साथ जा रही है, उसका सब्जेक्ट में भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, सारी जगह इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अब एक चीज बताइए कि इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए? बटन भी ना दबाना बटन नहीं दबाना पड़ेगा, वो भी है, वो भी आ जाएगा, वो भी है। आपका 1 तारीख को हर एक रिमाइंडर चला जाएगा, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगा, आप इसे बोलोगे वो भी है, वो भी है। अगर आप इसमें विंडोज का शेड्यूलर यूज करोगे और आप उसमें ये बोल देते हो कि 1 तारीख को मेरी इस शीट से चलाना है, वो भी चला जाएगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप इसमें मेरे सेंड बॉक्स में देखोगे, यहाँ पे थोड़ी नेट की कनेक्टिविटी आ रही है, इसमें मेरा आउटलुक सही से चल रही है, वहाँ पे सेंड में दिख जाएगी, सॉरी सेंड में दिख जाएगी। हाँ, तो ये देखो मेरे आउटबॉक्स में आ गई है 3 पेज, मेरी सेंड में नहीं गई अभी, क्योंकि शायद नेट का थोड़ा सा इशू है। आप ये देखो मेल की क्वालिटी, ये मेल भी मैंने चैट जीपीटी से ही ड्राफ्ट करी है, ठीक है। अब आप जो आप सर बोल रहे थे कि हम खाली डीएस आर्य मैडम करके लिख देते हैं, सर अगर आप उसका नाम आ जाता है, देखो हर एक बंदे को पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, अगर आप उसका नाम के साथ जी, वो तो देखो हर सिटी के हिसाब से अलग चलता है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में आप जाओगे तो खाली नाम लिखोगे, आप छोटी जगह पर जाओगे तो जी लगाना थोड़ा पड़ जाता है कि ये क्लाइंट है हमारा, ठीक है। अब आप ये मेल देखो,
I trust this message finds you well. We would like to bring to your kind attention. हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भेजनी है किसी क्लाइंट को, हिंदी में भी मेल चली जाएगी आपकी, ठीक है। अब आप सब मेल की बॉडी देखिए और उसमें ये देखिए, सब्जेक्ट में आ गया नवंबर का डेटा चाहिए, सब्जेक्ट में आ गया R1 का डेटा चाहिए, यहाँ पे आ गया नवंबर का डेटा, R1 का डेटा, ये डेट आ गई कि R1 की जो गवर्नमेंट की डेट है वो 11 तारीख की है। टू एंश्योर स्मूथ बिजनेस हमें डेटा आपको इस दिन चाहिए। अगर इस दिन के बाद डेटा आता है तो वी विल नॉट बी रिस्पांसिबल। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हम बीसीसी करने में या मैनुअल भेजने में या फोन करने में व्हाट्सएप पे मैसेज करने में भूल जाते हैं किसी एक आधा क्लाइंट को। ऐसा नहीं है हर महीने भूल जाते, साल में कभी कभार हो सकता है। उस पर जो पेनल्टी आती है, क्लाइंट कहता मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो आपकी गलती थी, आपने मैं रिमाइंड नहीं कराया। अब जैसा कि हमारे पास एक क्लाइंट का आरओसी फाइलिंग का कंपनी बना दी, दो डायरेक्टर से एक डायरेक्टर इंडिया छोड़ के चला गया, तो अब जो जिसके थ्रू काम आया था वो इंडिया छोड़ के चला गया, तो हमने उसका काम ही नहीं करा। दूसरा डायरेक्टर उठ के आया, तो कहीं से मिल गया होगा, कहता जी मेरी कंपनी, मैंने कहा कि आप तो मेरे से टच में नहीं थे, तो जो बंदा टच में था उसने तो मुझे बोला ही नहीं काम करना है, तो और फिर भी हमने उसको मेल मैसेज करे हुए हैं। अब वो जब वो हमें बोलेगा ही नहीं कि भैया काम करना है, तो मैं आगे चल के कैसे काम करूँगा। कहता जी पेनल्टी लग रही है आरओसी की, जो केवाईसी भी नहीं करा आपने, तो मैंने कहा मेरे को आप बताओगे जो मैं करूँगा, मेरी तरफ से मिल जा चुका आपको, आपकी मेरे पास डिटेल्स नहीं थी, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। जिस बंदे को मैं जानता था मैं उस डायरेक्टर को मेल कर चुका हूँ, अब उस डायरेक्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब ये क्या कि मेरे जो डेटाबेस था आरओसी का, उसमें सारे बंदे जितनी भी कंपनीज थी इनकॉर्पोरेट हमने डाल रखी थी, तो वो चला गया मैं तो मैं बच गया। अदरवाइज वो बंदा उठ के आ रहा था, मुझे बोलता कि भैया आपने तो मेल नहीं भेजा, आरओसी की पेनल्टी मैं नहीं पे करूँगा, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं आया, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आया, ठीक है। अब इस मेल में तो बेस्ट चीज क्या है कि आप इसको नवंबर की जगह दिसंबर कर दो, खाली 4 चीज चेंज करो। यहाँ पे मैं 3 भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 7 की जगह 12 कर देता हूँ सपोज। इसका मेल मर्ज बनाया होगा आपने? मेल मर्ज बनाया होगा इसका? सर ये मेल मर्ज नहीं है, ये एक्सेल का मैक्रो है। तो ये रिकॉर्ड मैक्रो करके आपको वैसे नहीं, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा, चैट जीपीटी से लिखवा के फिर वो हाँ जी। अब वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आगे वो चैट जीपीटी कैसे हेल्प करेगा। मैं फिलहाल आपको जो प्रोडक्ट बन चुका है, मैं प्रोडक्ट का आप आउटपुट दिखा रहे हो। हाँ, प्रोडक्ट के बाद में आऊँगा मैं। तो ये एक्सेल वर्जन कौन सा आपका ये वाला जो है? सर ये कोई भी एक्सेल वर्जन पे चल जाएगा जिसमें मैक्रो चल रहा है, जिसमें मैक्रो चल रहा है, ठीक है। एक्सेल वर्जन में मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफिस 365 है, ऑफिस 365 में बहुत सारी चीजें हैं, मैं वो एडवांस चीजें नहीं बता रहा हूँ कि ऑफिस 365 में भी क्या क्या है। मैं तो आपको बता रहा हूँ मैक्रो जिस सिस्टम में है, आप सिंपली ये बोलिए कि मैक्रो जहाँ पे है वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आउटपुट का अकाउंट जरूरी है हमारा? हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि आउटलुक का अकाउंट जरूरी है, लेकिन आप ये चीज अगर मैं बोलूँ गूगल से भी कर सकती हो, जीमेल से भी हो जाता है। वो कैसे है? सिंक हो जाएगा सर। किसका क्वेश्चन है जीमेल वाला? क्या चीज? नहीं सर, ये आउटलुक से सिंक है क्योंकि मेरे पास ऑफिस 365 है। नहीं मेरा हो जाता है। आपके पास जीमेल से सिंक हो जाता है। नहीं सर, आपके पास ऑफिस 365 आउटलुक है ना, 365 आपके पास आउटलुक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास आउटलुक नहीं होगा, इसलिए वो क्वेश्चन आ रहा है कि आउटलुक से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा। सर आप जीमेल से भेज सकते हो। वो बताइए जरा पिक्चर कैसी है? वो भी आ रहा है, जीमेल से भी चला जाएगा। दूसरा इसमें ये भी है कि माइक्रो इनेबल कैसे हुआ या नहीं हुआ, जैसे हमें कैसे मालूम हो कि कई चीजें होता है कि कई लोगों को मालूम नहीं होता है माइक्रो इनेबल। फाइल में जाके एडवांस ऑप्शन है, वहां पे मैक्रो के सेटिंग, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा हमारी जो सिरदर्दी है ना रिटर्न फाइलिंग की, कि रिटर्न फाइलिंग के लिए हमने एक बंदे को बैठाना है, उसको बार-बार बोलना, कुछ नहीं करना है, शीट बना लो, 5 शीट बना लो, जितने भी फाइल्स करते हो, आरओसी की, टीडीएस की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, एनुअल फाइलिंग का अलग बना लो, 5 शीट बनाओ, स्टाफ को बोल दो भैया महीने में आके बटन दबा दिया कर, इस डेट को तेरा भी काम आसान हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। अब जो तेरा टाइम बचा ना उस टाइम पे तो कुछ और काम कर ले। तो ये मेल पे ही पॉसिबल है, व्हाट्सएप से भी लिंक हो सकता है? सर व्हाट्सएप से यहाँ से लिंक नहीं हो पाएगा, व्हाट्सएप से जब मैं आपको जीमेल वाला बताऊंगा ना, वो जीमेल वाला लिंक हो सकता है, लेकिन उसके आपको पेड ऐप यूज करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप की पेड फंक्शनलिटी आपको यूज करनी पड़ेगी, जो कि आजकल व्हाट्सएप पे इंटीग्रेशंस आ गए हैं, वाटी और इंटरेक्ट करके जो ऐप्स आ रही है, जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं मेटा के, उनकी आप सर्विसेज लोगे व्हाट्सएप से हो जाएगा। ये है फ्री वाला जुगाड़।
ठीक है, ये तो सर एक हो गया रिटर्न। आप इसमें कोई भी चीज चेंज कर लो, किसी टाइप की रिटर्न, अगर आप यहाँ पे 50 100 जितनी भी ईमेल आईडी नाम डालोगे वो सब हो जाएगा। ये एक सैंपल है, इसमें आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो अपने हिसाब से करके आप कोड लिख सकते हो। कोड पे मैं बाद में आऊंगा कि कैसे हम कोड लिख सकते हैं। दूसरा मैं आता हूँ इनवॉइसेस का। सिमिलर सी की मेल है और सिमिलर सी की फाइल है। हमें सपोज इनवॉइसेस भेजनी है, क्या तो मैनुअल भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, बट ईमेल करने पे भी क्या एक एक ईमेल को डाउनलोड कर रहे हैं फिर इनवॉइस भेज रहे हैं। ठीक है, व्हाट इफ कि आपकी एक साथ अटैचमेंट भी उठा ले, एक फोल्डर में आपने सारी इनवॉइसेस डाली, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दी दीपक प्रतिभा राजा, यहाँ पे मैंने सारी इनवॉइसेस मेरी इस फोल्डर में सपोज क्लाइंट वाइज डाल दी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा इनवॉइस का अमाउंट, यहाँ पे क्लाइंट की ईमेल आईडी, यहाँ पे नेम ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पे बॉस की ईमेल आईडी, यहाँ पे मैंने बता दी कौन से महीने की इनवॉइस है, कौन से पीरियड की इनवॉइस है, इनवॉइस किस चीज की है वो भी मैंने यहाँ पे बता दी कि भैया मंथली कंसल्टेंसी है, ऑडिट है, रिकरिंग है, क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बता दी। अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेंड। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम सेंड क्लिक कर रहा हूँ तो इस टाइम पे ये मेरे को फोल्डर पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर से आपको अटैचमेंट उठानी है। मैंने इसको फोल्डर का पाथ दे दिया। अब इस फोल्डर में जितनी भी अटैचमेंट्स है वो उन सबको मेल भेज देगा उसी बंदे की। दीपक को दीपक की अटैचमेंट भेजेगा, प्रतिभा को प्रतिभा की भेजेगा, राजा को राजा की भेजेगा। नेम का थोड़ा सा इशू हुआ था, नहीं भेजेगा। ये मैक्रो मैंने ये ऐसे बनाया है, मैंने उसको कमांड ये दी है, आप कमांड चेंज भी कर सकते हो। मैंने उसको बोला कि भैया जो फाइल है, फाइल का नाम और पर्सन का नेम मैंने सेम रखा है। सो दीपक को आप दीपक की अटैचमेंट भेजना, प्रतिभा को प्रतिभा की भेजना, राजा को राजा की भेजना। आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि अटैचमेंट सीरियल नंबर 1 को सीरियल नंबर 1 भेजना, 2 को 2 भेजनी है। ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हो। आपको ये बोलना कि भैया लाइन 1 पे ये जानी चाहिए, लाइन 2 पे ये जानी चाहिए, अकॉर्डिंगली दैट आल्सो यू विल मेंशन। और उसी हिसाब से आप अपनी यहाँ पे अटैचमेंट्स मेंशन करेंगे कि किसकी अटैचमेंट्स यहाँ पे किस तरीके से डली हुई है। जैसे जैसे आप अटैचमेंट डालोगे, आप इमेजिन करो 50 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है। छोटे शहर में तो क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, बट इनवॉइसेस हमें छोटी छोटी जाती है। ऑटोमेशन पे आओ सर, ऑटोमेशन पे आओ, क्योंकि जो चीज ऑटोमेटिकली हो सकती है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। उसके अलावा और बिजनेसेस करो, आप अपना एक्ट पढ़ो, आप अपने लीगल केसेस देखो या जो भी चीज देख सकते हो। मतलब दीज आर द क्लरिकल वर्क्स जिसके लिए हम क्या तो हम लगे हुए हैं या स्टाफ लगा हुआ है, एंड वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन ऑल दिस थिंग्स, जो कि ऑफिस के रूटीन फंक्शंस है, रूटीन टास्क है। आपको 100 क्लाइंट्स को मेल भेजना है, कई बार तो मेल जा ही नहीं पाता है, भूल जाते हैं मेल भेजना कि भैया कौन भेजेगा मेल, क्योंकि सरकार ने इतने काम दे रखे, सरकार ने एक ड्यू डेट खत्म नहीं होती, दूसरी ड्यू डेट है। मतलब होली हो, दिवाली हो, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता जिसपे हम कहते हैं कि भैया 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। कभी नहीं हो सकता कि हम सोच रहे कि दिवाली पे, अभी दिवाली का टाइम है, मार्केट में सब जगह जाओगे, बाकी कॉर्पोरेट्स में लोग छुट्टी ले लेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भैया 3 से 4 दिन का सीए का ऑफिस बंद रहेगा। 3-4 दिन मत कर दो तो क्लाइंट हल्ला कर देंगे, सरकार हल्ला कर देगी, तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्लरिकल चीजें हैं, जो ऑफिस की डे टू डे लाइफ में चीजें हैं, वो उसको हम कैसे एक्सेल से ला सकते हैं, वो आप कर सकते हो। आपको जो भी इनवॉइसेज है जिस भी तरीके के आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, मंथ लिख लो एंड अमाउंट डालो। ये मैंने जो बना रखी है, मैंने अमाउंट वगैरह का डाल रखी है। आप अपने तरीके से जैसे भी आप भेजना चाहे उस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि पेमेंट रिमाइंडर। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनवॉइस का फॉलो अप नहीं करते हैं। हमें लगता है कि भैया सर्विसेज हमारी चैरिटी में चल रही है, एंड आई एम सरप्राइज कि कैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिना पैसे के 365 दिन का क्रेडिट पीरियड देके भी सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब मेरी इंडस्ट्री में 365 दिन का क्रेडिट पीरियड कहीं नहीं देखा है। खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो 365 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अदरवाइज 30 दिन, 60 दिन, मैक्सिमम 90 दिन। और आजकल तो एमएसएमई आ गए तो बोलते हैं कि वी आर रजिस्टर्ड अंदर एमएसएमई, तो हमारी पेमेंट तो आप इतने दिन में रिलीज कर दो, अदरवाइज एमएसएमई के अंदर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। बट हम फॉलो भी नहीं करते हैं पेमेंट का। उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब टैक्स ऑडिट खत्म हुआ, 9(9)C आ गई, आरओसी आ गई,
ठीक है, टैक्स ऑडिट खत्म हुआ, फिर आरओसी का AOC 4 आ गया, AOC 4 खत्म हुआ तो अब MJT 7 आ गया, ठीक है, ये खत्म होगा तो दिसंबर में हमारा 99C आ जाएगा। तो हम सोचते हैं कि यार बिजनेस हम चैरिटी करे जा रहे हैं, हम तो खाली काम करे जा रहे हैं, लेकिन पैसा जब कमाना होता है, पैसे मांगने होते हैं, तब क्लाइंट शकल नहीं दिखाता। क्लाइंट ने तो साइन करा लिया, उसका काम हो गया, क्लाइंट गायब। अब उसके बाद आप फोन करे जाओ, वो आपको घुमाता रहेगा, उसको पता है मेरा काम हो चुका। लेकिन जब अगले साल आएगा तब उसको पता है कि वो ऑडिट होना है, साइन कराना चाहिए, जरूरी ठप्पा चाहिए, तो फिर वो उस टाइम पुरानी पेमेंट करता है। लेकिन अगर हम महीने में 2 बार या 3 बार उसको पेमेंट फॉलोअप का मेल भेज दे सिंपली, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम 30-40% की आपकी जो आउटस्टैंडिंग तो क्लियर हो जाएगी? अगर हम मांगेंगे नहीं तो कौन देगा, कौन क्लाइंट देगा? आप एक चीज बताओ सर, मेरे को पैसे की जरूरत है, ठीक है, आप